Hi friends, so today we will see the service model with regards to Azure. So we will explain in terms of Pizza as a service model. So in this case, when we speak about a traditional model, so here if we are making a homemade pizza, then in that case we have the managed. What the things we will manage is like we should be having a dining table with drinks, with oven, with fire, pizza dough, and the tomato sauce toppings and the sauce. So these are all the managed in the home. So that would be the managed services which can be managed through home. Now, on the other hand, when we speak about the on-premises model in regards to Azure environment, so we'll see the second diagram which says traditional on-premises. Now, what are the on-premise data center? If we have the applications, we have the OS, virtualization, server, storage, network, and middleware. So these are our traditional on-premises model when compared to Pizza as a model. Now second is when we see about infrastructure as a model. So in that what we will do, take and bake. So the pizza dough, this tomato sauce toppings, this will purchase on the market, and in our home we will prepare in the oven and we will fire, and with the dining table we will have and serve our pizza. So this is our on-premise. Sorry, it's our infrastructure as a model where infrastructure as a service, which is a nice model. In this model, the vendor will manage the virtualization, the servers, the storage, and the network part. And at the home, we will get our applications, the data in the company, the operating system, the middleware, which requires, in that case, the suppose let's say we have Windows 10 computer on our LAN environment, so it would be provided at home. So this is infrastructure as a model. Now, when it comes to um, third part, which is platform as a service. So platform as a service model, when it talk in terms of pizza, then in that case what we will do, we will bring these things like we asked the home delivery of pizza. So in that case we have only table and our food drinks to, and we will order it from the restaurant. Then home delivery means all the equipments with the pizza will get delivered at our home. In the same way, when it comes to platform as a service, so the vendor will provide us the OS, the servers, network, the storage, and the middleware, whereas the applications which will be having at our home and data also will be having at our home. So hard disk and that part will be taken care by platform as a service. So now software as a service, how software as a service will work. So we'll go to the restaurant, to all the services are managed by the restaurant. So in that case that would be a PaaS model. Sorry, that would be a SaaS model. In the software as a service means we have all the applications ready. We just need to deploy the application over the middleware with having servers over any network with the virtualization and middleware. So this is all about the cloud computing model we have discussed with the on-premise, considering the example of a pizza and as a service model. So we have discussed traditional on-premises model, traditional on-premises, IaaS, PaaS, and SaaS. Thank you. Okay, so in this video we will learn how to create a resource groups in Azure. So I am onto my Azure portal, and here I can go to resource group. Now when I click on create a resource group, I will create a as I already have a subscription called Azure subscription 1. So here I will go ahead to create a resource group, naming with RJ space test, and the region which is already defined for my Azure subscription is US East, US. Now here I will review and create it. Okay, so all the validation gets passed. Now I am able to click on create and able to create the resource group. So we have seen here, like in this Azure subscription one, in the East US region, we have created a resource group named RJ Test 1. Now in these resource groups we have different options to manage those views. Suppose we have to create this resource group in the manage view. So here it is showing us as
if any tags we have to do, means if in naming convention we have to follow name and a value. So what are tags? Tags are names or value pairs that enable us to categorize resources and view consolidated billing by applying the same tag to different multiple resources and groups. So the tag here means it can be any name or value which would be associating the resources that will help us the Azure portal to uh, have billing process easy. So thank you for very much. We have discussed here how to create a resource groups in Azure. Thank you. So today we will create in a how to create a virtual network in Azure. So I'm into the Azure portal, and here I will type virtual network. So this is the virtual network screen I got. Now I create a virtual network. Now I have to I have already subscription name Azure subscription one. Now here I have the resource group, so I will create it by my name Generation RJ. That will be the resource group. It's already exist, same name. So I created other resource group with the same name. Resource group with the same name already existed. Okay, so I will create a new resource group. If I have already existing one, that also I can put it in the drop down. So this is the resource group I already have. Now instance detail I can avd vnet, and I will select the region South Central US. Now next selection of IP address I will select as a default, and clicking on next security, next tags I will leave. Now here also I will click on next review and create. So all the validation passed for the resource group and in the Azure subnet. So I will click on create. So this is initializing the deployment. Okay, so now I can see that I have my virtual uh, deployment has been succeeded and I am able to create the resource group. So you will see the virtual network when I go ahead here, virtual network. So here we have successfully created a virtual network named avd-vnet. Thank you. So now we will see in this video, after creating the tenant in Azure Active Directory, we will create a list of users. So for this, I will go to my Azure Active Directory, and after Azure Active Directory, in the middle window, you will see manage users, groups, external identities. So when I click on users, so I will see this users one is already been created. Okay, so likewise, I can add a new user. Suppose I am adding the new user to be in this identity only. So I will click on new user. Now I'm adding a name as mine only. Let's say it's a CHANDRESH. Okay, generation at the rate synoptic day one. It will automatically take the Azure tenant ID, and the name is here. I will write my full name and the first initials like the first name, and the last initials will be the last name. So and it will be asking me for password. So if I can also create the password, so I will create my own password here, and the settings will be block sign in, yes or no, job title it will be asking, and I will hit create. So unable to create user. Why? Because the password does not specify the complexity. So I will ask them to auto generate the password. So this would be the password which I will save in my for remembering it for one letter. I will keep it as capital letter dash 12345 with the first letter TS capital, and then I hit create. So now this group successfully we have created the users in this video. Now when I click on all users review, so Azure Active Directory will give me the list of users now, and it will be a member of this. I can't see the users still now. Again I will click on manage view to edit columns where that group is being there. So okay, now I can see the users. It takes some time in refreshing the things, so I can see the users as
Chandresh Chansiwale with the Synoptic domain as synopticdev1.onmicrosoft.com. So these two are two members here. We can see Jacob and Chandresh. So these two users we have created in Azure Active Directory after creating the tenant. Thank you for watching this video. Bye. In this video, we will check how to add custom domain names to Azure Active Directory. So we have a tenant which is named as synopticdev1.onmicrosoft.com, and in the last video we have created the users in the Azure tenant. Now when we need to add custom domain name, so we will go here under tenant where we see the tenant ID, and in the between tab we will see here custom domain name. So here we can see one already existing custom domain name for the Azure AD, which is synopticdev1.onmicrosoft.com. Now if you want to publish our own domain here, we can add a custom domain name by clicking on add custom domain. So let's say I have a hosting provider, say godaddy.com. So this will be my custom domain name, and this I am adding it. Okay, now this will check for the txt record which is in their database. Suppose I have a already registered domain name SR2 which is godaddy.com. So in that godaddy.com I have to check the visibility of txt record in the domain name which I have checked. And if I want to make this domain name as to need to verify, then it will register the provider with the domain name of GoDaddy. I have to log into that account and we'll have to check. So this is the way where we can verify those domain. As if now I am not verifying here, and I am clicking on delete button here, just creating it for testing purpose. We have created this domain and it will be removing it from users, groups and applications. So I am deleting this custom domain name. Now about the already reserved domain name which is available, here is an option we can make it as primary if we have other domain name as well, custom domain name which I have added godaddy.com. So that also I can make it as primary. So this is the video where we have seen how the domain names are created, custom domain name in our Active Directory Azure tenant. Thank you. So in this video we will see now how to create an administrative units in Azure. So we will go to all services and here we will check for the administrative units. Now when I click on learn more, I can also create an administrative units to know more about this, what actually administrative units in Azure means. So this gives you the documentation like what the administrative unit is. Like school is there, so school of business we can say it as an administrative unit, school of engineering, security team, executive team. So likewise I can create a administrative unit group in Azure. So when I click on add, I can create an Azure administrative group for, let's say, uh, Canadian customers. I have created a group called Canadian groups. Now enter the description where it would ask me to write what exactly is Canadian group. So who is, it's meant for people of Canada. So this group is, I will write it as description for people of Canada. So this is the Canadian groups in administrative units. I will review and create it. Now basis on it, this in administrative unit we have different authentication parameters where one we can access an administrator. Suppose it's a cloud device administrator, so it will have limited access to manage devices in Azure AD. And suppose it's an help desk administrator, so it will ask to reset the password for non-administrator as well as help desk administrator. So in this way, after reviewing it, I can go ahead to create it. Means I can give any kind of role to it. So let's say next review it, and suppose I have a user. Let's say I have to make this Jacob Hurd as an help desk administrator. So all the requests will go to him, and he will be added as a help desk administrator, so that he can be responsible for resetting the password for all the Canadian groups.
which are involved in the administrative units of Azure. So this is the feature for administrative unit in Azure. Now I am removing the users because I don't want it to add it as an administrator or make it as a help desk administrator. So like that I can generally create a group. So this is the group of administrative units which is created successfully in Azure. Thank you. So in this video we will work on the Azure Active Directory licensing part where we would assign the license to the users. So for example, we are in Azure Active Directory tenant, which is synopticdev1.onmicrosoft.com. Now here we have to check for the licensing. That we click on license tab, we see that there are licensed no group assignment errors found here. However, when we check on the licensed features, we will see here there are different features for the licenses, like for Azure AD Premium 1 licenses, that is for company branding and customization of logon. So there are AD Premium P2 licenses. Similarly, for multi-factor authentication for phone and SMS system, there are licenses for AD Premium 1 and AD Premium P2. And with that, group assignment is there. And for identity protection, if we check for the licenses, so here also we have to check for Azure Premium P2 licenses. And when we check on all products, so currently in this video it is not been added the licenses, but we can assign or buy licenses from the portal, and also we can remove the users from licenses. So since it's a test lab where we are not adding any kind of licenses because it impacts the billing part, so we can raise a support request also if we have any issues with regard to licenses. So that's all about the licensing feature of Azure. Thank you. Check on the work on the role assignments in Active Directory. So I have in the subscription in the name synopticdev1.onmicrosoft.com, and in that I will go to roles in the administrators. So here we will see the number of roles like application administrator, application developer, then authentication administrator. So these are the list of users under which several permissions are built in for the several role type. So when I click on download assignments, so what all permissions I can see that will be seen in a CSV file. So I click on start. Now here we can check the status of each operation. We found this as a bulk, what all rules are there, and we can download those results here. So the CSV file we will get here, so it will open when done. So our bulk operation gets completed, and we are good to go the results. So here it's loading, and I will click on don't show. So these are the role assignments where under directories where multiple roles are defined with the one UPN user principal name as admin@synopticdev1 dot, and since there is one user called Jacob Hurt, so we'll be defining the display name for those role assignments, and it's a global administrator. So here we have completed the role assignments in Active Directory. So thank you. Tenant in Azure. So first we'll go to portal.azure.com, as you can see in the screen, and from that I have gone to my dashboard where I can see the URL aad.portal.azure.com, which is an Azure Active Directory admin center. Now to create a tenant, I have to go to Azure Active Directory, and here I will see in the manage tenant section it is already been created. So this is the default tenant for me with the organizational ID, and in that tenant I will see the tenant ID associated with it, so that if you have to create any resource in Azure, I will easily able to create it. Now if I have to manage tenant and switch to other directories, so in this way I can create tenant by clicking on create button, but since I am involved in the organizational AD, so that is the tenant type is Azure Active Directory. Now when I have to manage those tenants, so I will
click on manage tenants, and I will be able to create new tenants and switch to new directory also. Switch directory if I have to do, then I can switch to other directory. So here I have one current directory which is synopticday1.org.microsoft.com, and if I have to switch the other directory, then it is switched. I can click on switch, so it will roll back to my other account. So thank you for watching this video. We have seen here that how to create an Azure tenant in Active Directory in Azure portal. Thank you. Hi guys, so today we will see the role assignments in Azure. So this is our Azure screen with the portal.azure.com, and now I have the resource group विद द नेम चंद्रेश आरजे। अभी रिसोर्स ग्रुप मेरे पास है, तो इसके अंदर हम देखेंगे आज की रोल असाइनमेंट कैसे कर सकते हैं। तो रोल असाइनमेंट बेसिकली एक वर्चुअल मशीन बना के करेंगे हम जो रिसोर्स ग्रुप में। तो जो मेरा रिसोर्स ग्रुप है चंद्रेश आरजे नाम से, इस ग्रुप में मैं एक वर्चुअल मशीन बनाऊंगा। तो ठीक है, हम देखते हैं वर्चुअल मशीन कैसे बनाते हैं। इसके लिए मैं सर्च बार में टाइप करूंगा वर्चुअल मशीन। जब मैंने वर्चुअल मशीन पे क्लिक करा तो देखिए अभी तक कोई वर्चुअल मशीन नहीं है मेरे पास, तो एक वर्चुअल मशीन बना देते हैं हम। अजूर वर्चुअल मशीन, क्लिक ऑन क्रिएट। अब चूंकि मेरा रिसोर्स ग्रुप है यहाँ पर चंद्रेश आरजी, तो मैंने ये वर्चुअल मशीन सिलेक्ट करा। वर्चुअल मशीन का नाम दे दिया सपोज विंडोज वीएम, क्योंकि मैं विंडोज की वीएम बनाऊंगा इसलिए मैंने एक जेनरिक नाम दे दिया विंडोज वीएम। चाहे तो आप दूसरा नाम भी दे सकते हैं। अब चूंकि मेरा रिसोर्स ग्रुप यहाँ पर है, अभी जो मेरा रिसोर्स ग्रुप है देखिए वो कौन से रीजन में है, वो है मेरा ईस्ट यूएस में, इसलिए मैं वर्चुअल मशीन भी इसी रीजन में बनाऊंगा फॉर द बेटर कन्वीनियंस। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं किस टाइप का वीएम इमेज सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ चूंकि विंडोज वीएम लिया है तो मैं यहाँ पर विंडोज टाइप करके देखता हूँ। विंडोज सर्वर भी बना सकता हूँ, विंडोज 10 इमेज भी बना सकता हूँ मैं। इस तरीके से यहाँ हम सी ऑल इमेजेस भी देख सकते हैं। तो यहाँ मुझे पूरी लिस्ट आ जाएगी जिसमें कि जिस टाइप की वीएम मुझे चाहिए। तो देखिए यहाँ पर विंडोज 10 इमेज है, तो यह इस तरीके से मैं विंडोज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 वर्चुअल मशीन सिलेक्ट करता हूँ। और इसमें प्लान्स है मेरे पास किस टाइप की चाहिए मुझे, सेकेंड जनरेशन चाहिए, 2H2 चाहिए, विंडोज प्रो डिजाइन चाहिए। तो इस तरीके से हम सेलेक्ट करके हमारी वर्चुअल मशीन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ हम ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करके भी विंडोज वीएम बना सकते हैं। तो सपोज मैं विंडोज 10 वीएम लेता हूँ, विंडोज सर्वर ले लेता हूँ या फिर विंडोज 10 इमेज लेता हूँ। सी ऑल इमेजेस पे क्लिक करके मैं पूरी इमेजेस देख सकता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं अपन अदर लिस्ट देखने के लिए। विंडोज 365 ऑफिस क्लाउड और इसकी इमेज है, तो ये विंडोज सर्वर 2019 वर्जन है। तो इस तरीके से मैं कोई भी वीएम लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इसके लिए मैं विंडोज 10 सेलेक्ट कर लूंगा फॉर द बेटर कन्वीनियंस, इसलिए मैं यहाँ सेलेक्ट करके विंडोज 10 एंटरप्राइज ये वाली सेलेक्ट कर ली। इसके बाद में इसकी प्राइसिंग देखूंगा, जिसमें कि प्राइसिंग हमारे पास 2 CPU 4 GB मेमोरी ये अनअवेलेबल है, या इसके लिए हम अलग प्राइसिंग पूरा पैरामीटर देख लेंगे। यहाँ पर हमें ये सब चीज़ें देखिए डिफरेंट सीरीज की भी है, V2 सीरीज, D5 सीरीज, D सीरीज। फॉर बेटर कन्वीनियंस मैं 4 GB रैम के साथ एक वीएम कैलकुलेट वीएम बनाऊंगा। तो V2S मैंने सेलेक्ट करा है। ओके, यहाँ पर यूजर ने पूछेगा वीएम बनाने के लिए कौन सी इमेज चाहिए, अपने कौन सा एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉगिन करेंगे। तो मैंने नाम देता हूँ इस वीएम का, वेब नाम दिया सपोज मैंने फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम। और इसका जो पासवर्ड रहेगा वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, कुछ भी रैंडम करके। मैं इंश्योर दैट इट शुड बी फॉलो देयर कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट को फॉलो करें। और आरडीपी पोर्ट मतलब मैं आरडीपी भी ले सकता हूँ। लाइसेंसिंग में मैंने कंफर्म करा, देन रिव्यू नेक्स्ट। वर्चुअल मशीन को हम वैलिडेशन फेल, कुछ चीज मिस हो रही है इसलिए यहाँ पर ऐसा मैसेज आया, वैलिडेशन फेल हुआ लिखना चाहिए। तो वर्चुअल मशीन में बेसिक ऑप्शन जो है हमारा ये सिलेक्ट करा है, मल्टीपल वेब वीएम, वैल्यू वे मस्ट नॉट बी एम्प्टी। यहाँ पर कुछ वैल्यू एम्प्टी बता रहा है ये 2010 इसकी इमेज भी ले सकते हैं पहले बनी हुई। ओके, देन आई विल सिलेक्ट विंडोज 2016 का सर्वर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट कर लिया है एंड देन आई क्लिक ऑन रिव्यू क्रिएट।
ओके, वैलिडेशन पास हो गया तो वी आर गुड टू क्रिएट अवर वर्चुअल मशीन। तो ये जो हमारी वर्चुअल मशीन बनेगी ये इस रिसोर्स ग्रुप में बनेगी, लोकेशन ईस्ट यूएस। सो इट विल टेक सम टाइम टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। अब इसमें चूंकि नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप भी बना देगा और जिसके कारण वो वर्चुअल मशीन को भी अलॉट होंगे, लिंक असाइन होगी, इसलिए ये लोकेशन ईस्ट यूएस में हम इसको नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बना के इसकी वीएम तैयार होगी। इसमें वर्चुअल नेटवर्क ग्रुप जो कि एक रिसोर्स ग्रुप में बनेगा, जिस देखिए बन गया है यहाँ पर जनरेश-RP और ये वीएम इसकी वीएम तैयार हो रही है। सो हम वेट करेंगे 2 मिनट का। एक वर्चुअल मशीन बना देते हैं इस रिसोर्स ग्रुप में। अब हमारी जो वर्चुअल मशीन बन चुकी है जिसका नाम है विम वीएम, जो कि एक विंडोज मशीन है और लोकेशन ईस्ट यूएस में है। अब इस वीएम को चूंकि हमने आरडीपी पोर्ट दिया था जो कि 389 अवेलेबल है, तो ये हम इस वीएम को हम स्टार्ट करके देख सकते हैं, कनेक्ट करके देख सकते हैं आरडीपी पोर्ट जो कि 3389। इस तरीके से मैं आरडीपी फाइल डाउनलोड कर लूंगा जो कि पोर्ट नंबर 3389 पर चलती है इस वीएम को एक्सेस करने के लिए। तो देखिए अब मेरी आरडीपी फाइल जो है डाउनलोड हो चुकी है। अब मैं इस वीएम को कनेक्ट करता हूँ, तो उसके लिए मुझे इसके लिए क्रेडेंशियल चाहिए जो कि पब्लिक आईपी एड्रेस पे चलेंगे। देखिए 172.174.112.93। तो इस वीएम को मैं एक्सेस कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं मोर चॉइसेस देख लीजिए और इस वीएम को मैं एक्सेस करता हूँ। इसका नाम जो मेरा यूजर नेम दिया था मैंने इस वीएम का, जो कि वेब दिया था, और इसका पासवर्ड जो है एक्सेस करने के लिए इस वीएम को वो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। देखिए मेरा वर्चुअल मशीन तैयार है इस रिसोर्स ग्रुप में जो कि लोकेशन ईस्ट यूएस है। तो कोई भी वीएम को एक्सेस करने के लिए हम बाहर से एक्सेस कर सकते हैं आउट ऑफ द अज़ूर रीजन विदाउट एनी वीपीएन टनल और इंटरफेस। अब इस वीएम में देखेंगे हम लोड हो रहा है। ओके, तो मेरा वीएम लोड हो चुका है। अब इस वीएम का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं हम सर्वर मैनेजर में जाके। डू यू वांट अलाउ पीसीज टू डिस्कवर नो पे क्लिक करूंगा मैं। अभी देखिए यहाँ पर जो है इस वीएम को मैंने कोई यूजर असाइन नहीं करा है। रूल्स एंड फीचर्स में लोकल सर्वर जो है अपना, ओके, तो ये मेरा वीएम है। अभी इसमें मैं एक्टिव डायरेक्टरी ये यूजर्स ग्रुप्स में जाता हूँ मैं। यहाँ पर कोई भी रोल्स मुझे असाइन करना है इस वीएम को, तो मैं यहाँ से एक्टिव डायरेक्टरी रोल या जिस भी टाइप का रोल है वो मैं असाइन कर सकता हूँ। अब मैं वापस अपनी यहाँ पर कोई भी यूजर नहीं है। अब इस वीएम को मैं एक रोल असाइनमेंट देता हूँ बाय क्रिएटिंग यूजर्स इन एक्टिव डायरेक्टरी इन अज़ूर। ठीक है, तो इसके लिए मुझे जो कि वीएम तो मेरा बन चुका है, अभी यहाँ पर मैं यूजर बनाने के लिए अज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी में जाऊँगा। ओके, सो अज़ूर एक्टिव डायरेक्टरी में जाके मुझे यूजर बनाना है। तो मैंने इस लैब में ऑटोमेटिकली यूजर बना रखा है, तो यहाँ यूजर्स पे क्लिक करके हम यूजर नया यूजर भी बना सकते हैं। नया यूजर बनाकर अपन इसको ऑर्गेनाइजेशन सेट कर सकते हैं। अब चूंकि मैंने ऑलरेडी लिस्ट बना रखी है तो एक यूजर पे जाता हूँ जिसका नाम है राजू। ओके, अब इस यूजर में चूंकि हमारा वीडियो है रोल्स एंड असाइनमेंट इन वीएम, तो मैं ये असाइन रोल्स पे जाता हूँ। ओके, तो ये ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का रोल असाइन किया है अपन ने इसको। ठीक है, अभी मेरा जो वीएम है जो रिसोर्स ग्रुप में है इसमें एक्सेस कंट्रोल आईएम में जाएंगे हम, इसमें हम रोल असाइनमेंट करेंगे। अभी रोल असाइनमेंट के लिए मैं ऐड रोल असाइनमेंट करता हूँ। अब चूंकि मैंने एक वर्चुअल मशीन बना रखी है इस नाम पे विन वीएम, देखिए ये वीएम, इसको मैं नया विंडो में ओपन कर लेता हूँ टू अवॉइड कंफ्यूजन। अभी हम करेंगे इसमें जो वर्चुअल मशीन हमने बनाई है इसको हम एक रोल असाइनमेंट करेंगे जो कि ईस्ट यूएस में है, इस रिसोर्स ग्रुप में है, बीनेट में। ओके, तो मैं यहाँ पर रोल असाइनमेंट लगाया एक्सेस कंट्रोल आईएम। यहाँ पर ऑनर रोल है, कंट्रीब्यूटर रोल है, ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की भी है, वहाँ आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी हर रोल का क्या एक्चुअली सिग्निफिकेंस है। तो मैंने यहाँ पर वर्चुअल मशीन टाइप करा, वर्चुअल मशीन। ओके, तो मैं इसको वर्चुअल मशीन let's you manage virtual machine but to not to access them on the virtual network or storage account they are connected to. Okay, virtual machines only virtual machines on the portal login as local user on the ARC server. Okay, तो यहाँ पर मैंने इसको वर्चुअल मशीन का यूजर लॉगिन असाइन करा है इस रिसोर्स ग्रुप में। ओके, अब यहाँ पर यूजर ग्रुप और प्रिंसिपल नेम को मैं असाइन कर सकता हूँ, व्यू एंड असाइन। ओके,
बैक जाना पड़ेगा, मेंबर अपन ने कोई असाइन करानी है, तो यहाँ पर मैं मेंबर सेलेक्ट कर लूँगा। अब देखिए मैंने जो आपको लिस्ट ऑफ यूजर्स बताए थे उनमें से मैं एक यूजर असाइन कर दूंगा जिसका नाम है राजू। सो फॉर एग्जांपल इसमें मैं जो लिस्ट ऑफ यूजर्स में स्क्रॉल करूंगा और यहाँ पर जो है मुझे लिस्ट ऑफ यूजर देखिए दिख रहे हैं और ये यूजर मैं ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लूंगा, सेलेक्टिंग, और मैं नेक्स्ट पे क्लिक करा मैंने और रिव्यू एंड असाइन। तो इस तरीके से हमारा रोल असाइनमेंट हो रहा है इस वीएम का इस यूजर लॉगिन के लिए। ओके, सो अब मैं इस वीएम को इस जो यूजर बनाया है उसके थ्रू मैं लॉगिन करके चेक करूंगा। तो मेरा वर्चुअल मशीन है ऑलरेडी, इसको मैं लॉग ऑफ कर देता हूँ, शट डाउन नहीं करेंगे हम, सिर्फ डिस्कनेक्ट कर देंगे, जो कि इस पर्टिकुलर यूजर लॉगिन से हो जाएगा। अब मैं वापस मेरी वर्चुअल मशीन को एक्सेस करता हूँ, तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ winvm एंड कनेक्ट। ओके, सो RDB चूंकि हमारे पास ऑलरेडी फाइल हमने डाउनलोड करी थी लास्ट टाइम, तो ये RDB फाइल से मैं VM एक्सेस करूंगा। नाउ देखिए ये VM जो है मेरा, अब जो VM का मैं बनाया था उसकी जो क्रेडेंशियल है वो हम यूज करेंगे जो हमने यूजर बनाया अभी। सो मेरा क्या था, raju@synopticdev1.microsoft.com। देखिए ये यूजर है मेरा, यहाँ पर क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे और यहाँ पर चाहे तो आप ये यूजर को कॉपी करके यहाँ कर सकते हैं। तो ये मैंने कॉपी पेस्ट करा और यहाँ पर जो है इसका पासवर्ड दे देते हैं हम, जो VM का जो इस यूजर का पासवर्ड है, जब मैंने बनाया था ये यूजर तो उसको पासवर्ड पूछता है, तो वो पासवर्ड मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये यूजर VM जो है इस क्रेडेंशियल पे ये कर रहा है। सो ये जो रोल असाइनमेंट है ये हमने एक्टिव डायरेक्टरी में इस रिसोर्स ग्रुप में कराया, और हमें एक्सेस देख सकते हैं। सो दिस वर्चुअल मशीन यूजर लॉगिन, ओके देखिए वर्चुअल मशीन का यूजर लॉगिन ये है। सो इस वीएम को एक और बार ट्राई करेंगे लॉगिन करके। इसका पासवर्ड एक्सपायर हो गया होगा यूजर का, सो हम रीसेट कर सकते हैं और लॉगिन कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने रोल असाइनमेंट देखा एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी में बाय क्रिएटिंग ए वीएम और उसको रोल परमिशंस असाइन करके। और आफ्टर बनने के बाद मेक श्योर यू डिलीट ऑल योर वीएम्स, इसके कारण हमारा जो एज़्योर का कॉस्टिंग है वो इफेक्ट नहीं होगा। थैंक यू। Hi friends, so today we will learn how to create a role assignments in Azure, and with role assignments we will see how a user role can be accessed in a storage account by role based access in Azure. So we will create a storage account for Azure AD role। तो सबसे पहले मैं Azure Active Directory में जाता हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे पास यूजर्स है जिसका नाम है, यूजर्स बना रखे हैं, ये लिस्ट ऑफ यूजर्स। आप भी यहाँ पर नया यूजर बना सकते हैं, क्लिक करके न्यू यूजर पे क्लिक करके अपन नया यूजर क्रिएट कर सकते हैं जो कि इस डोमेन में रहेगा synopticdev1.onmicrosoft.com। अभी चूंकि मैंने यूजर बना रखा है इसलिए मैं ये सपोज मेरा यूजर है। इसके लिए रोल बेस्ड एक्सेस के लिए हमें एक स्टोरेज अकाउंट लगेगा, तो इसके लिए हम रिसोर्स ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पर एक स्टोरेज अकाउंट बनाएंगे। इसके लिए एक रिसोर्स ग्रुप लगेगा और उसको हम मैप करेंगे स्टोरेज अकाउंट में। तो मैं ये स्टोरेज अकाउंट बनाता हूँ लोकेशन ईस्ट यूएस में, एंड व्हेन आई रिव्यू एंड क्रिएट बेसिक टैग्स, तो इस तरीके से मेरा स्टोरेज अकाउंट बन चुका है, रिसोर्स ग्रुप बन चुका है। ओके, अब मैं आता हूँ स्टोरेज अकाउंट पे, स्टोरेज अकाउंट्स। ओके, सो यहाँ पर मैं स्टोरेज अकाउंट बना देता हूँ, क्लिक ऑन क्रिएट स्टोरेज अकाउंट। ये स्टोरेज अकाउंट लोकेशन ईस्ट यूएस में बनेगा और इसका नाम देता हूँ मैं सपोज ट्रेनिंग 123।
Okay, I think name is already taken, so training 045. okay, ये मैं स्टोरेज अकाउंट बना लिया है और इसमें स्टोरेज के साथ रहेगा तो LRS में बेसिक प्रोटेक्शन रहेगा अगेंस्ट रैक और ड्राई फेलियर्स का। GRS में क्या होगा, इंटरमीडिएट ऑप्शन जिसमें फेल ओवर कैपेबिलिटीज कर सकते हैं सेकेंडरी रीजन में, इसमें बैकअप भी हो सकता है हमारा। ओके, सो एडवांस टैब में जाता हूँ मैं, नेटवर्किंग, नेक्स्ट, इंटरनेट राउटिंग। सो ये सब डिफॉल्ट ऑप्शन से हमें रखना है विदाउट एनी चेंजेस। तो इस तरीके से मेरा स्टोरेज अकाउंट बन चुका है और ये रिव्यू करके एक बार बताता है रिसोर्स मैनेजर। तो इस तरीके से मेरा स्टोरेज अकाउंट बन चुका है Azure रीजन में। डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस में तब तक हमारा यूजर्स चेक कर लेते हैं। ओके, तो हमारा मेन मकसद है कि रोल बेस्ड एक्सेस कैसे हम देंगे। तो चूंकि अब हमने स्टोरेज अकाउंट बना लिया है एक, ओके, डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। ओके, तो मैं रिसोर्स में जाता हूँ, गो टू रिसोर्सेस, और रिसोर्सेस में जाके देखिए अब जो है मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो लोकेशन ईस्ट यूएस में मेरा ये बन गया है और प्राइमरी और सेकेंडरी दो साइट में है। ये इसलिए क्योंकि अगर कोई साइट इसमें अगर हमारे मशीन्स पड़े हैं तो वो सेकेंडरी इसमें वेस्ट यूएस लोकेशन में ऑटोमेटिक फेल हो जाएगा, जो कि हमने GRS लिया था इसलिए। ओके, सो मेरा ट्रेनिंग अकाउंट बन चुका है विथ नेम 045। ओके, अभी इसमें मैं एक्सेस कंट्रोल IAM में जाता हूँ क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रोल बेस्ड एक्सेस। तो इस तरीके से हम रोल असाइनमेंट जब कर देंगे, अब रोल असाइनमेंट देंगे। अब चूंकि हमने यूजर बना लिया है तो इसको हम रोल असाइनमेंट दे सकते हैं। देखिए बहुत सारे रोल्स है इसमें, ये स्टोरेज अकाउंट को तो एक्सेस बेसिस पे हम इस तरीके से दे सकते हैं एक्सेस। वर्चुअल मशीन कॉन्ट्रीब्यूट इसके अंदर हम मशीन मैनेज कर सकते हैं, नॉट उसके स्टोरेज और वर्चुअल नेटवर्क एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो अभी जो कि हमने ट्रेनिंग अकाउंट बना लिया है इसको हमने रीडर रोल दे देते हैं, जिसके कारण वो सभी रिसोर्सेज जो स्टोरेज अकाउंट में रहेंगे वो एक्सेस कर पाएगा। ओके, यहाँ एक यूजर ऐड कर लेते हैं मेंबर्स में। तो मैंने ऑलरेडी जो यूजर बनाया है यहाँ पर राजू नाम का, वो मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो ऑटोमेटिकली लिस्ट में मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा। ओके, तो ये मैंने यूजर सिलेक्ट कर लिया है एंड रिव्यू एंड असाइन। अभी देखिए यहाँ पर मैं रिव्यू एंड असाइन करता हूँ और मेरा रोल असाइनमेंट ऐड हो गया है ट्रेनिंग अकाउंट में। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ इसको ट्रेनिंग अकाउंट को और इसमें जाता हूँ मैं एक्सेस कंट्रोल IAM में। तो हम देख सकते हैं हमारा रोल्स जो है बन चुका है। तो रीडर रोल ऑफ यूजर्स में देखेंगे हम जाके, इसको रिफ्रेश कर देते हैं। सो दिस यूजर इज असाइंड ए रोल विच इज, देखिए यहाँ पर एक असाइंड रोल ऐड हो चुका है इसको। तो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर ऐड करा था पहले। अभी हम इसको टेस्टिंग के लिए हम ट्रेनिंग अकाउंट में जाके इसको एक्सेस चेक करेंगे हम। ठीक है, अभी हमने इस यूजर को असाइन रोल्स में जगह हम और यहाँ पर असाइनमेंट कर सकते हैं। अब ये असाइनमेंट में देखिए यहाँ पर ऑथेंटिकेशन एडमिनिस्ट्रेटर है, बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर है, डिफरेंट टाइप्स के रूल है। तो मैं बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर सपोज इसको असाइन करता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो उसमें पूरा बिलिंग का डेटा जो है यहाँ पर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सभी एक्सपेक्ट वो उसको दिखेंगे यहाँ पर इस यूजर को। तो अब ये जब बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर हो चुका है तो मैं स्टोरेज अकाउंट पे लॉगिन करके चेक कर सकता हूँ कि स्टोरेज अकाउंट में मुझे इसका जो एक्सेस है वो दिखेगा, कितनी बिलिंग इसमें जा रही है। सो एक्सेस कंट्रोल IAM में जाता हूँ मैं और लेट्स से वी कैन ऐड विद यूजिंग दिस अकाउंट। इस अकाउंट से लॉगिन करके हम देखिए ये ग्लोबल एडमिन का अकाउंट है और ये है इसका बिलिंग एडमिनिस्ट्रेटर। अब मैं जब इसमें जाऊंगा तो मुझे सब्सक्रिप्शन में ट्रेनिंग अकाउंट में दिखेगा।
सिग्नेचर वो देखिए यहाँ पर, ये मेरा जो ट्रेनिंग अकाउंट है। ओके, तो मैं इनकॉग्निटिव विंडो ओपन करके इसको वापस से लॉगिन करता हूँ। portal.azure.com और जो यूजर बनाया है स्टोरेज अकाउंट में उसको मैं उससे भी लॉगिन करता हूँ। तो ईमेल एड्रेस के लिए पूछेगा, तो जो कि हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और ये हम इसको कॉपी पेस्ट करके नेक्स्ट पासवर्ड जो इसका पहले सेट करा हमने वही भी टाइप कर देता हूँ। अपडेट करने की पूछ रहा है पासवर्ड, सो लेट्स सी p10@123 डालता हूँ मैं। ओके, तो इस तरीके से हम लॉगिन करके वापस से देख सकते हैं। अभी मैं पासवर्ड चेंज नहीं करना चाहूँगा, इसलिए मैं इसको स्क्रीन को क्लोज कर देता हूँ। हमारा बेसिक कंसेप्ट ये था कि हम इसको किस तरीके से करके कर सकते हैं। थैंक यू। First I will create a virtual machine and since I have the test resource group name test rg, ये रिसोर्स ग्रुप मैंने क्लिक करा है यहाँ पर टेस्ट rg एंड उसके बाद वर्चुअल मशीन का नाम सपोज देता हूँ VM01 और ईस्ट यूएस में बनाई है मैंने। अब ये स्टैंडर्ड जो है पूछ रहा है कि VM की इमेज कौन सी लगी है यहाँ पर। सो विंडोज इमेज अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पर विंडोज सर्वर विंडोज 10 भी है मेरे पास। सी ऑल इमेजेस देखना है तो ये इस पर मैं क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट ये मुझे पूरी विंडोज VM की लिस्ट बता रहेगा जिसमें कि अंडरस्टैंड कंपैटिबिलिटी है, नेक्स्ट भी कर सकता हूँ मैं। सो पूरी लिस्ट है यहाँ पर कि 5 सर्वर विंडोज 10 इंटरप्राइज सर्वर एंड इसकी कॉस्ट भी दे रखी है। देखिए 0.0, अगर विंडोज सर्वर कोड चाहिए मुझे तो 0.02 पर डॉलर ओवर है इसकी कॉस्ट है। इसी तरीके से अगर अपने को लाइट वेट चाहिए तो मैं यहाँ पर इजीली ऐड लिख देता हूँ विंडोज 10 की एसोसिएटेड मुझे लिस्ट बता देगा ये कि क्या क्या उसमें। सपोज ये वाली सिलेक्ट करता हूँ। ओके, सो ये मैं ऐड कर रहा हूँ अपने मशीन में ऐड फेवरेट्स। ओके, बैक टू मैं अपने इमेजेस पे जाता हूँ, माय इमेजेस एंड यहाँ से भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ शेयर्ड इमेजेस जो कि मार्केट प्लेस से वापस क्रिएट वर्चुअल मशीन पे आके यहाँ पर हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 वर्चुअल मशीन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, विंडोज 10 ये वाली जैसे सिलेक्ट करें कितने VM चाहिए मुझे तो यहाँ पूरी लिस्ट आ जाएगी। विंडोज 10 एंटरप्राइज वर्जन चाहिए मुझे या फिर ऑफिस 365 के पास MB चाहिए मुझे, तो इस टाइप से अपन मल्टी सेशन होस्ट की भी विंडोज VM ले सकते हैं। तो मुझे जनरल VM चाहिए इसलिए मैं ये वाली सिलेक्ट करूंगा। अभी देखते हैं ये बना पता है कि नहीं। यहाँ पर स्टैंडर्ड P1। ओके, यहाँ साइजिंग भी मैटर करती है। अगर अपने को ज़्यादा GB का मेमोरी चाहिए तो उसके लिए अपने को हेवी VM लेना पड़ेगी और अगर अपने को सिंपल VM लाइट वेट चाहिए तो वो इस तरीके से साइजिंग के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। जिससे मैं 2 GB रैम में लेता हूँ तो ये भी मुझे मिल जाएगी 4 GB रैम और 2 CPUs। बट B1S में अगर हम देखें B11S में तो और अपने को 0.5 GB रैम पे मिलेगी। तो इस तरीके से मैं B1S में एक VM सेलेक्ट कर रहा हूँ जिसमें कि 2 GB रैम में मिल जाए 1 GB रैम विथ 1 CPU। अब इसकी यूज़र नेम अगर मैं देता हूँ तो सपोज मैं इसका यूज़र नेम देता हूँ वेब और पासवर्ड है, पासवर्ड ये स्टोर कर लेते हैं। कंफर्म पासवर्ड की पूछेगा वापस तो मैं वापस कंफर्म पासवर्ड डालता हूँ। RDP पोर्ट्स इसमें अपन रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं 3389 पोर्ट से।
और यहाँ पर कंफर्मेशन प्रीमियम, ये लोकली रिडंडेंट स्टोरेज और सिंगल प्रीमियम, तो मैं स्टैंडर्ड एसडी सिलेक्ट करता हूँ। ये वेब सर्वर्स लाइट वेट एप्लीकेशन के लिए बेस्ट होता है इसलिए। नेक्स्ट नेटवर्किंग अगर पूछेंगे तो उसमें वर्चुअल नेटवर्क को अपने को सिलेक्शन करने के लिए मिलेगा। तो ये डिफॉल्ट आईपी पे अपन ने वीनेट क्रिएट कर लिया है और यहाँ पर मैनेजमेंट पोर्ट्स लोड बैलेंसर भी चाहिए अपने को। इस तरीके से मैं लॉग इन विद अजूर एडी अगर रोल असाइनमेंट करना है अपने को उसमें तो रोल असाइनमेंट को दिखता है। नेक्स्ट मॉनिटरिंग की बात करें तो नेक्स्ट एडवांस्ड, इसी तरीके से टैग्स 13 सेलेक्टेड। 13 में क्या ऑटो शट डाउन सिक्योर वर्चुअल मशीन्स, तो इसमें कुछ भी टैग सेलेक्ट नहीं करके अगर मैं सेलेक्ट करना चाहूँ तो फिर सभी 13 सेलेक्ट कर रहा हूँ। अभी इसमें भी एक एरर आ गया है, देखते हैं क्या है। मल्टीपल सिलेक्ट कर लेते हैं अपन, सपोज किसी भी जोन में अगर वो फिट हो जाएगा तो अपना जोन 3 बन सकता है। ओके, AM364 is not supported. ओके, सो only constituency pricing unavailable है इसकी। नेक्स्ट जो अवेलेबल है कर लेते हैं अपन, इमेज पब्लिशर B2S D सीरीज का 4th जनरेशन जनरल पर्पस नीड्स के लिए है। लेटेस्ट T5 सीरीज 5 का है तो ये अदर पर्पस के लिए यूज करा है। D सीरीज का देखते हैं B2 जनरेशन, अगर ये अवेलेबल है क्या अपने को। ओके ठीक है, ये तो बता रहा है जनरल अवेलेबल है, तो ये सिलेक्ट कर लेते हैं हम जल्दी से। और नेक्स्ट रिव्यू क्रिएट पे क्लिक करके अब नेटवर्किंग मेरा लगा है कि वैलिडेशन रिक्वायरमेंट ओके। लोड बैलेंसर लगेगा इसमें अपने को। सो इफ अगर नन सिलेक्ट करते हैं तो हो सकता है। नेक्स्ट बेसिक टैब में अगर अपन जाएंगे तो बेसिक में ओके 3 वर्चुअल मशीन्स प्लेस करने की बोल रहे हैं एक जोन में, तो अपने को एक ही वीएम चाहिए तो इसलिए मैं यहाँ पर एक ही वीएम रख रहा हूँ ऑन द फर्स्ट अवेलेबल सेट। सो अब मैं नेक्स्ट आई कंफर्म पे क्लिक करके नेक्स्ट डिस्क पे जाते हैं। सो डिस्क एलोकेशन इस प्रीमियम स्टैंडर्ड रखा है अपन ने। नेटवर्किंग में जाएंगे तो नेटवर्किंग में भी अपने को RDP होस्ट दिखेगा। निक पोर्ट मॉनिटरिंग इसकी देखें तो मॉनिटरिंग बाय डिफॉल्ट बन रखी है। सो नेक्स्ट करके ओके, सो टैगिंग में दे रहा हूँ मैं इस तरीके से रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करें। अब ये RDP पोर्ट अपन सेटिंग बैक टू बेसिक्स अपन जाएंगे। RDP पोर्ट अपन अलाउ नहीं कर सकते हैं इसको, तो वो अपन ऑफ कर देंगे। पोर्ट तो SSH ओके ठीक है, रिव्यू एंड क्रिएट अपना वर्चुअल मशीन क्रिएट करने में है एंड वील क्लिक ऑन क्रिएट। वैलिडेशन पास हो चुका है। ये वर्चुअल मशीन 5 से 10 मिनट में बनेगी और इस तरीके से अपने को फिर अपना होस्ट पुल जो है अपना यहाँ पर अपन MSIX पैकेजेस एप्लीकेशन ऐड कर सकते हैं। सेशन होस्ट भी अपन बना सकते हैं, जैसे वर्चुअल मशीन एक बार अपने ऐड कर ली तो देन यू कैन ऐड द MSIX पैकेज। तो डिप्लॉयमेंट अपना प्रोग्रेस में है, लेट्स वेट।
ये एप्लीकेशन ग्रुप्स जो अपना जो डिफॉल्ट जब होस्ट पुल अपने बनाया था तो ये एप्लीकेशन ग्रुप भी ऐड हो जाता है होस्ट पुल में सेम लोकेशन में। नेक्स्ट आती बात एमएसए पैकेजेस की जो अपन ऐड करेंगे। So host will not contain available virtual machines. Okay, तो इसका ये जब तक अपन वर्चुअल मशीन ऐड नहीं करेंगे तब तक अपना एमएसए पैकेज इसमें ऐड नहीं होगा। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से अपन वर्चुअल मशीन को ऐड करें होस्ट पुल में जिससे कि अपना एप्लीकेशन ग्रुप बन जाए। ओके, सो सी यू नेक्स्ट वीडियो on the application groups which we made in host pool. Thank you. We have created वर्चुअल मशीन जिस बनाई थी हमने वो देखा था। अब नेक्स्ट हम इसमें जो होस्ट पुल हमने बनाया है इसमें अपन सेशन होस्ट में जाके वो वर्चुअल मशीन ऐड करेंगे। तो इसमें ऐड पे क्लिक करता हूँ मैं। अब ऐड पे क्लिक करने के बाद रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करा। सो फिर वर्चुअल मशीन का पैरामीटर रह गया, तो वर्चुअल मशीन का जो है वो ऐड करने के लिए जो ऑलरेडी अपनी वर्चुअल मशीन VM0 बनी है वो अपन यहाँ पर ऐड करेंगे। इसके लिए अपना सेशन होस्ट लेना पड़ेगा। सपोज SH01 नाम देता हूँ। अवेलेबिलिटी जोन किस जोन में इसको बनाया है हमने, सो 1 अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि अपन ने 1 VM सेलेक्ट करा है। इसी तरीके से अब इसकी वर्चुअल इमेज जो है विंडोज 10 एंटरप्राइज वर्जन जो दिया है ये अपन सेलेक्ट करते हैं। वैल्यू नंबर ऑफ VMs 1 बनाएंगे अपन ने। इस सेशन उसमें पूछ रहा है कि कितनी VM बनानी है, तो अपने 1 ही VM रखना है अपने को। अगर एक से ज़्यादा रखना है तो वैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। देन टेस्ट आर्चिव वर्चुअल नेटवर्क ग्रुप बनाया है। इसी तरीके से अब यहाँ पर 80 डोमेन ज्वाइन पासवर्ड अपने को डालना है तो वो अपन यहाँ पर चेक कर लेंगे। इसके लिए अपन AD ज्वाइन के लिए vm@contoso.com ये सैम्पल में देखता हूँ contoso.com। ओके, ये डोमेन जो है मशीन पूछ रहा है, इसके लिए मैं पासवर्ड सपोज वेबडेव और सपोज ये रख सकता हूँ। ओके, इसका यूज़र नेम सपोज AVD VM है, मेरा AVD यूज़र है तो AVD यूज़र नाम दे देता हूँ इसको। इसका पासवर्ड जो है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ वेबडेव 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये इस तरीके से मैं कॉन्फ़िगरेशन करा और क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट मेरा वर्चुअल मशीन सब ऐड होने जा रहा है होस्ट पुल में। ओके, वैलिडेशन पास हो गया, मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट। ये स्टेप होने के बाद नेक्स्ट अपन जो स्टेप है वो अपना ऐड अपन एप्लीकेशन अब MSX पैकेज ऐड करेंगे उस होस्ट पुल में। ओके, सो लेट दिस प्रोसेस कंप्लीट्स। इसी को अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो ये बन चुका है मेरा अपडेटेड होस्ट पुल को इसने अपडेट कर दिया है। होस्ट पुल पहले बन चुका था और इसमें इसने VM वर्चुअल मशीन से ऐड कर लिए बाय क्रिएटिंग ए सेशन होस्ट। सो ओके, VM क्रिएशन लिंक्ड इन टेम्पलेट लिंक हो गया है अपडेटेड होस्ट पुल के। सो डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस में अपना टेस्ट रिसोर्स ग्रुप उठाएगा है, टेस्ट आर्चिव रिसोर्स ग्रुप। इसको हम नई विंडो में ओपन करके देख सकते हैं क्या क्या पैरामीटर अभी तक अपन ने बनाए हैं। तो ये मेरा नई विंडो में ओपन होगा और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर होस्ट पुल है, इसमें एप्लीकेशन ग्रुप्स है। इस तरीके से सेशन होस्ट 01 बनाया है, उसकी निक अटैच्ड है, निक मींस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड अटैच्ड है सेम लोकेशन में। इसी तरीके से वो डिस्क भी अटैच कर देता है। टेस्ट आरजी का जो रिसोर्स ग्रुप बनाया है उसमें एक वर्चुअल नेटवर्क बनाया है जिसमें कि एक VM का वर्चुअल मशीन बनाया है, उसको पब्लिक IP देके नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट हुए हैं। तो ये इस तरीके से अपन एक डिफॉल्ट सबनेट में अपन वर्चुअल मशीन बना रहे हैं जिसमें कि अपन ने allow RDP पोर्ट करा है। तो इसको अपन डिनाई भी कर सकते हैं। अगर अपना RDP पोर्ट से एक्सेस नहीं करना चाह रहे हैं तो अपन इसको यहाँ से डिनाई कर सकते हैं, RDP रिक्वेस्ट यहाँ डिनाई कर सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से हमने अपना वर्चुअल मशीन बनाया है। इसको अपन यहाँ देख सकते हैं डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हुआ है कि नहीं। होस्ट पुल स्पेसिफिक डिप्लॉयमेंट ओके, रिफ्रेश करते हैं इसको एक बार। यहाँ पर अगर हम चाहें तो इस VM को आप डाउनलोड करके कनेक्ट करना चाहें तो RDP से कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट RDP क्लिक करेंगे तो इसकी RDP फाइल अपने को जनरेट होगी जो कि डाउनलोड करनी पड़ेगी। वो डाउनलोड करके अपन इस RDP फाइल को पब्लिक IP से एक्सेस दे सकते हैं। रिफ्रेश
तो टेस्ट रिसोर्स ग्रुप है कि रिसोर्स ग्रुप है जिसमें कि वर्चुअल मशीन ईस्ट लेवल 16 है, पब्लिक आईपी एड्रेस है जो कि नॉट DNS नेम नॉट कॉन्फ़िगर्ड है, ओके एडिंग VMs टू द होस्ट pool.
Okay, so still resume back to video. So still the host को है उसको वर्चुअल मशीन होना चाहिए तभी ये ऐड हो पाएगा. सेशन होस्ट अपन ऐड कर लिया है, इसमें अभी इसका स्टेटस अनअवेलेबल है क्योंकि डोमेन चेक फेल हो रहा है. सो एक बार हम इसको वापस ट्रबलशूट करेंगे व्हाई इट इज फेलिंग टू नॉट कनेक्टिंग टू डोमेन. ओके, तो इसके लिए अपने को एक एक्टिव डायरेक्टरी अकाउंट बनाना चाहिए जिसमें कि थ्रू डोमेन से ऑथेंटिकेट करें वो मशीन एंड देन वी आर एबल टू क्रिएट इट इन द डोमेन. सो वापस अपना वर्चुअल मशीन की सेटिंग चेक करेंगे. ऑथेंटिकेट अगर ये हो रहा हो डोमेन, सो हम इसको कनेक्ट करके देखते हैं इसकी आरडीपी फाइल डाउनलोड करके. सो डाउनलोड आरडीपी फाइल. ओके, सो ये वीएम को अपन डोमेन अकाउंट से ऑथेंटिकेट करेंगे तभी अपना पता पड़ेगा कि ये फेल क्यों हुआ है. सो वी क्लिक ऑन कनेक्ट एंड आफ्टर कनेक्ट करने के बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से डोमेन से ऑथेंटिकेट होगा. तो इस तरीके से हम इसको डोमेन से ऑथेंटिकेट कराएंगे. जो डोमेन हमने लिया था vm@controlsuite.com. यहाँ पर जो पासवर्ड है वो हमने डाला था vm का ही हो गया. ओके, सो यहाँ तो ये ऑथेंटिकेट नहीं होगा, कुछ डिफरेंट अकाउंट यूज करेंगे अपन, इसलिए डोमेन से ऑथेंटिकेट नहीं हो रहा है. ये मेरा पासवर्ड है, मैं नया यूज करूँगा और यहाँ पर एक यूजर लेंगे. सो होपफुली ये हो जाए कनेक्ट. तो vm में कुछ प्रॉब्लम है अपना, that's the reason it's not connecting us. So still then we can troubleshoot in our next video. Thank you. Hi friends, so आज हम देखेंगे कि किस तरीके से जस्ट इन टाइम vm एक्सेस काम करता है अपने Azure एनवायरनमेंट में. तो JIT एक VM एक्सेस जस्ट इन टाइम वर्चुअल मशीन एक्सेस है जो कि माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर यूज करता है क्लाउड एनवायरनमेंट में. और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से थियोरेटिकल पार्ट अप्लाई कर सकते हैं Azure पोर्टल पे. ओके, सो बेसिकली इसका रिस्क ये रहता है कि मैनेजमेंट पोर्ट ओपन कर सकते हैं अपन वर्चुअल मशीन पे या फिर कोई भी वर्चुअल मशीन पोर्ट से डिनाई कर सकते हैं. वाई JIT VM एक्सेस इज द सॉल्यूशन, क्योंकि जितने भी साइबर अटैक होते हैं तो इनका गोल रिड्यूस करना रहता है कि सर्विस को कम करना. इस केस में हम कुछ ओपन पोर्ट्स कर सकते हैं, स्पेशली मैनेजमेंट पोर्ट्स कह सकते हैं कि RDP हो गया, 3389 पोर्ट हो गया. तो इस तरीके से जो मैनेज कर सकते हैं वर्चुअल मशीन्स को रिमोट लेके, वो अपन मैनेजमेंट पोर्ट्स ओपन करके उस तरीके से सिक्योरिटी अचीव कर सकते हैं. तो इसके लिए अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अटैक को रिजॉल्व करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर क्लाउड ने JIT ऑफर करा है. JIT की मदद से हम कोई भी इनबाउंड ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकते हैं जो अपने VM पे आ रहा है, जिसके कारण अटैक हमारे कम होंगे और इस तरीके से हम इजी एक्सेस हमको किसी भी VM को कनेक्ट करने मिल जाएगा. अब JIT कैसे ऑपरेट करता है क्लाउड एनवायरनमेंट में, जो कि अपना Azure है और AWS है. Azure में हम इनबाउंड ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकते हैं किसी भी पोर्ट्स पर बाय इनेबलिंग करके जस्ट इन टाइम VM एक्सेस को. इसी तरीके से डिफेंडर में हम डिनाई ऑल इनबाउंड ट्रैफिक ये सेटिंग को चेंज करके हम पर्टिकुलर नेटवर्क सिक्योरिटी को या फिर Azure फायरवॉल के रूल्स को चेंज करके हम एक्सेस दे सकते हैं किसी भी VM को और अटैक से बचा सकते हैं. इसी तरीके से अगर दूसरे रूल भी एग्जिस्ट होते हैं किसी सिलेक्टेड पोर्ट के लिए, तो उस तरीके से हम डिनाई ऑल इनबाउंड ट्रैफिक रूल्स को कर सकते हैं. मतलब डिनाई ऑल इनबाउंड ट्रैफिक में क्या होगा कि कोई भी वर्चुअल मशीन में जो भी बाहर से ट्रैफिक आ रहा है वो सभी पोर्ट को ब्लॉक कर देगा. ठीक है, इस तरीके से अगर कोई एक्सिस्टिंग रूल नहीं होता है कोई पोर्ट पे, तो नए रूल्स में प्रायोरिटी लेके Azure NSG और Azure फायरवॉल पर चेंजेस कर सकते हैं. इसका बेटर हम डायग्राम से समझ सकते हैं. और एक बात यहाँ नोट करने की ये भी है कि JIT VM में सपोर्ट नहीं करेगा जो Azure फायरवॉल से प्रोटेक्टेड रहते हैं या फिर Azure फाइल मैनेजर में जो प्रोटेक्शन मिलता है. तो Azure फायरवॉल मस्ट बी कॉन्फ़िगर्ड विद रूल्स क्लासिक एंड कैन नॉट यूज फायरवॉल पॉलिसीज. तो ये हमको याद रखना पड़ेगा कि अगर कोई VM में Azure फायरवॉल सेटअप है तो उसमें JIT सपोर्ट नहीं करेगा. अब यहाँ अपन देखेंगे कि किस तरीके से डिफेंडर क्लाउड आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी VM में JIT अप्लाइड है. Azure की बात करें तो Azure में अगर अपन देखेंगे, स्टार्ट करेंगे फ्लो चार्ट डायग्राम है, इसमें अपन देखेंगे कि अगर कोई VM स्टार्ट करा है अपन ने, उसका जस्ट इन टाइम VM एक्सेस ऑलरेडी इनेबल्ड है, तो वो नेक्स्ट इस पे जाएगा, येस कहेगा, VM क्लासिफाइड एज हेल्थी बताएगा उसको. इसी तरीके से अगर जस्ट इन टाइम VM एक्सेस उसका इनेबल नहीं है तो वो फिर उस VM को हम असाइन करेंगे किसी NSG में जिसको कहते हैं हम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप. अगर इसका नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप उस VM को असाइन है तो हम आगे चलेंगे, फिर आगे वो चेक करेगा कि NSG में वो पोर्ट को रूल्स अलाउ करेगा कि नहीं. इसमें अगर आपको कनेक्टिविटी देना है RDP पोर्ट पे लेट्स से 3389 या फिर कोई फाइल शेयर करनी है तो पोर्ट 22 का यूज करके अपन अगर अलाउ कर देंगे वहाँ पर रूल्स. अलाउ करने के बाद
अगर अपने को उसको डिनाई करना है तो वो वीएम क्लासिफाइड एज हेल्दी पे आ जाएगा। और अगर वीएम अगर अपने इस रूल से प्रोटेक्टेड है तो वापस उसमें फर्दर चेक्स होंगे कि ये वीएम अगर फायरवॉल से प्रोटेक्टेड है, इफ यस तो फायरवॉल में भी वापस रूल चेक करेगा कि ये पोर्ट में अपन ने रूल सेट कर रखा है कि अलाउ करेगा, अगर यस है तो वापस उसमें इनेबल कर देगा वीएम को एक्सेस को। इसी तरीके से अगर फायरवॉल रूल अलाउ है तो वो यहाँ पर अगर फायरवॉल अप्लाई नहीं है तो वीएम उसको हेल्दी क्लासीफाई कर देगा। इसी तरीके से अगर वीएम प्रोटेक्टेड है, वीएम अगर अपन ने इसका केस देखिए, अगर जस्ट इन टाइम एक्सेस इनेबल नहीं है और उसके बाद में अपन वापस नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में चेक करेगा, उसके बाद वापस पूछेगा उसको कि वीएम फायरवॉल से प्रोटेक्टेड है कि नहीं, तो इस तरीके से अगर प्रोटेक्टेड नहीं होगा तो इस तरीके से वो वीएम क्लासिफाइड एज नॉट एप्लीकेबल करेगा। तो अनहेल्थी रिसोर्सेज का स्टेट भी हम माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर क्लाउड में जाके रिकमेंडेशंस में अनहेल्थी रिसोर्सेज में देख सकते हैं। अब इस तरीके से कुछ परमिशन इशू भी आ सकती है, वो हम नेक्स्ट क्लास में देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी जस्ट इन टाइम एक्सेस की परमिशंस इशू आते हैं जिसके कारण हम कॉन्फ़िगर नहीं कर पाते हैं और क्या क्या एक्शन लेना चाहिए। ओके, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद JIT VM एक्सेस और वर्चुअल मशीन्स इन क्लाउड। थैंक यू। हम VM बना सकते हैं और उसको जस्ट इन टाइम एक्सेस में इनेबल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लास्ट वीडियो में जैसे हमने जस्ट इन टाइम का एक डिफरेंट डिटेल देखी थी, उसी तरीके से हमारी वीएम बन चुकी है। इसका नाम है टेस्ट वीएम और इसमें हम देखिए कैसे अपन अप्लाई कर सकते हैं उनके नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में, किस तरीके से हम पोर्ट्स डिफाइन कर सकते हैं बाय अलाउइंग नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स टू दस वीएम। तो ये हमारा वीडियो है, माइक्रोसॉफ्ट का ट्यूटोरियल हम देख लेते हैं एक बार। तो देखिए वर्किंग विद जस्ट इन टाइम एक्सेस यूजिंग डिफेंडर। अभी इस तरीके से अपन वीएम्स को ग्रुप करेंगे, कॉन्फ़िगर्ड नॉट कॉन्फ़िगर्ड। कॉन्फ़िगर्ड मतलब जिसमें कि वो जस्ट इन टाइम वीएम एक्सेस सपोर्ट करेगा। इसमें जितनी भी JIT अप्रूव्ड रिक्वेस्ट लास्ट 7 डेज में अप्रूव हुई है वो बताएगा एक्सेस डेट टाइम कनेक्शन डिटेल्स और लास्ट यूजर। अगर कोई नई कॉन्फ़िगर्ड हुई तो वो वीएम्स विदाउट JIT इनेबल्ड। तो इस तरीके से हम JIT इनेबल कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड से। तो इस तरीके से हमारी जो वर्चुअल मशीन बनी है ये वाली टेस्ट वीएम, यहाँ पर हमें देखिए कि इस रिसोर्स ग्रुप में है और हम माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड ओपन कर लेंगे। इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। तो अभी यहाँ पर सब रिकमेंडेशंस बता देगा कि इस तरीके से ऑल रिकमेंडेशंस पे अपन क्लिक करेंगे तो बता देगा कि कितनी हाई है और कितने लो है। देखिए रिसोर्स की हेल्थ दिख रही है, अनहेल्थी, और यहाँ पर जो है एक्टिव रिकमेंडेशंस है। और इस पर मेरा जो डायग्राम है इसमें देखिए कैसे हम जस्ट इन टाइम वर्कलोड प्रोटेक्शन में जाऊंगा मैं। तो यहाँ पर वर्कलोड प्रोटेक्शन माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड वर्कफ्लो ऑटोमेशन है, वर्कलोड प्रोटेक्शन में टाइप कर देता हूँ। ओपन वर्कलोड प्रोटेक्शन एडवांस प्रोटेक्शन जस्ट इन टाइम वीएम एक्सेस। तो जस्ट इन टाइम वीएम एक्सेस में मैं जाता हूँ अपने अजूर पोर्टल पे, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ जस्ट इन टाइम वीएम एक्सेस डिफेंडर फॉर क्लाउड। तो ये वापस मुझे यहाँ स्क्रीन पर ले आ रहा है। अभी वर्कफ्लो प्रोटेक्शन अपने को ऑप्शन यहाँ पर देखना पड़ेगा क्योंकि मैं सही ऑप्शन में हूँ माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड के, और यहाँ पर वर्कलोड प्रोटेक्शन से। ओके, तो ये सब्सक्रिप्शन इसमें प्रोटेक्ट नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर अपन इनेबल कर देंगे माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड। ठीक है, तो इसमें अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन जिसकी सेवरल कॉस्ट प्लान है। अगर वो पर्टिकुलर अपना सर्वर है वो प्लान 2 में है तो इसका $15 सर्वर पर मंथ। तो जस्ट बताने के लिए मैं आपको बताना चाहता था कि इस तरीके से हम ये डॉक्यूमेंट फॉलो करके जस्ट इन टाइम एक्सेस कॉन्फ़िगर कर सकते, इनेबल कर सकते हैं। जिससे होगा क्या कि ये इसकी ओपन लिस्टिंग हो जाएगी पोर्ट्स के लिए। जैसे मान लीजिए अपने को 22 पोर्ट ओपन करना है, 338 में RDP पोर्ट है, विंडोज RM पोर्ट है, इस तरीके से हम इनको इनेबल करके अपना जो प्रोटोकॉल है वो इनको रिक्वेस्ट पे अलाउ कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर अपडेट नहीं करूँगा सब्सक्रिप्शन मेरा। इस तरीके से मैं एक तरीका है जो ओवरलोड प्रोटेक्शन में वर्कलोड प्रोटेक्शन में जाके इसको इनेबल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिख रहा है कि ऐड माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड टू सब्सक्रिप्शन फॉर यूनिफाइड व्यू ऑफ सिक्योरिटी अक्रॉस ऑल ऑफ योर ऑन प्रीमाइस एंड क्लाउड वर्कलोड्स। तो इसके अंतर्गत हम ये प्रोटेक्ट नहीं है, तो अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वो इनेबल करना चाहेंगे तो अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा प्लान, और इसमें जो भी कॉस्ट आएगा अपना सर्वर का तो मैं वो नहीं करूंगा क्योंकि ये कंपनी का रिसोर्स है। आपके फ्री ट्रायल में अगर ये दिखे तो आप बिल्कुल करिएगा। थैंक यू। Hi friends, so today we will see on how to टेक बैकअप ऑफ द वर्चुअल मशीन्स इन अजूर। तो उसके लिए हम चलेंगे हमारी वर्चुअल मशीन में, जो कि मैंने ये अजूर पोर्टल पे वर्चुअल मशीन बना ली है। तो इस वर्चुअल मशीन इसका नाम है VM01। ठीक है, इस वर्चुअल मशीन में जाएंगे हम और इसका हम बैकअप लेंगे अपने अजूर वर्चुअल मशीन का।
तो इसके लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ कनेक्ट करके और RDP फाइल पे क्लिक करता हूँ। RDP फाइल पे क्लिक करने के बाद मेरी वर्चुअल मशीन इस तरीके से लोड हो जाएगी। ठीक है, अब चूंकि मुझे बैकअप लेना है वर्चुअल मशीन का या फिर इसके अंदर जो भी रिसोर्सेस है, तो मैं इस तरह के लिए या फिर फाइल्स वगैरह है उसका बैकअप में ले सकता हूँ। तो इसके लिए मैं टेस्ट फोल्डर बनाता हूँ और उसके अंदर एक फाइल बना लेता हूँ, नोटपैड फाइल बना लेता हूँ। ओके, ये टेस्ट नाम की फाइल बना ली और इसमें लिख दिया मैंने दिस इज ए टेस्ट फाइल। ठीक है, ये मेरी फाइल बन चुकी है। अब मैं इसमें करूँगा क्या कि ये मेरा जो फोल्डर बन गया है इस वर्चुअल मशीन में, इस वर्चुअल मशीन में इस फाइल का बैकअप लूँगा मैं। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारे अजूर पोर्टल पे और यहाँ पर देखिए वर्चुअल मशीन के पास हमारे पास अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। अब बैकअप में इसमें अगर हम देखेंगे तो बैकअप का ऑप्शन देखते हैं, मॉनिटरिंग है, नेटवर्किंग है। इस तरीके से मैं बैकअप ऑप्शन में जाता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर टाइप कर लूँगा या तो बैकअप, ठीक है, बैकअप सेंटर, बैकअप वोल्ट। तो अजूर की एक सर्विस है जिसको कहते हैं बैकअप वोल्ट। ओके, तो इसके लिए ये वर्चुअल मशीन का एक बैकअप क्रिएट कर लेगा। अभी वापस हमारी वर्चुअल मशीन पे चलते हैं हम और यहाँ पर देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज को है। ये देखिए बैकअप का ऑप्शन है, यहाँ पर डिजास्टर रिकवरी है। तो ये ऑपरेशन अपन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें हम सिंपल बैकअप करेंगे हमारी वर्चुअल मशीन का। इसके लिए बैकअप पे क्लिक करता हूँ। ओके, बैकअप पे क्लिक करने के बाद अजूर की एक सर्विस है जिसका नाम है रिकवरी सर्विस वॉल्ट। तो ये ऑटोमेटिकली एक बैकअप वॉल्ट इसका क्रिएट कर लेता है इसके रिसोर्स ग्रुप में जो हमने वर्चुअल मशीन बनाई है। ओके, अब यहाँ पर आपसे पूछेगा ये किस तरीके की पॉलिसी इसमें है। स्टैंडर्ड है तो 1 डे पे बैकअप हो सकता है, 1 to 5 डेज ऑपरेशनल टायर है। अगर मल्टीपल बैकअप करना है तो उस तरीके से हम बैकअप पॉलिसी चूज कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर डेली बैकअप पॉलिसी अगर हम करना है तो इस तरीके से 1 से डे को बैकअप फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। अब अभी यहाँ पर देखिए फुल बैकअप करना चाहिए तो 8 AM EST। अगर मैं टाइम यहाँ चेंज करना चाहूँ तो मैं इसमें सेलेक्ट एक्सिस्टिंग तो नहीं कर सकते हैं, बैकअप फ्रीक्वेंसी में यहाँ से एडिट कर सकता हूँ पॉलिसी अगर मुझे कुछ एडिट करना है। देखिए अगर मैं चाह रहा हूँ IST टाइम में बैकअप होना चाहिए मेरा डेली या फिर यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकता हूँ। वीकली करना चाहूँ मैं तो इस तरीके से मैं दे सकता हूँ कि यहाँ पर रिटन इंस्टेंट रिकवरी स्नैपशॉट फॉर 2 दिन के अंदर रिकवर करना है या फिर 5 दिन तक। सो यहाँ पर लिखा है वैल्यू मस्ट बी 5 फॉर बैकअप पॉलिसी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ शेड्यूल एज वीकली। मतलब जब आप वीकली शेड्यूल लेंगे तो मिनिमम 5 दिन का बैकअप उसको लगेगा वर्चुअल मशीन को बैकअप करने के लिए। इज द लेटेस्ट स्टेप नोट इज द ओनली इंस्टेंट रिस्टोर पॉइंट अवेलेबल, इट विल बी रिटेन अंटिल द नेक्स्ट सक्सेसफुल बैकअप कंप्लीशन। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर अपन लेटेस्ट स्नैपशॉट रिस्टोर पॉइंट अवेलेबल रहता है तो वो अपने नेक्स्ट सक्सेसफुल बैकअप को रिटेन कर लेगा। तो अपन यहाँ पर डेली बैकअप ले लेते हैं और टाइम में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मशीन हर डेली डेली बैकअप होगा इसका सुबह 8 बजे। तो अपना IST टाइम जोन में मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, रिटेन इंस्टेंट वैल्यू 1 to 5 के बीच में होना चाहिए, मतलब हर 2 दिन में ये इंस्टेंट रिकवरी करेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं इसकी बैकअप रिसोर्स ग्रुप भी बना सकते हैं अगर अपन चाहें तो। यहाँ पर देखिए रिकवरी पॉइंट्स कैन बी ऑटोमेटिकली मूव टू वॉल्ट आर्काइव टायर यूजिंग बैकअप पॉलिसी। ओके, तो इसका मतलब बोलना ये है कि हर 2 दिन में जो रिकवरी पॉइंट बनाएगा वो ऑटोमेटिकली अपनी बैकअप पॉलिसी जो है उसमें बनते जाएगा। ओके, मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, बैकअप को इनेबल करता हूँ। ठीक है, अभी ये वैलिडेट करेगा इससे और डिप्लॉयमेंट का सबमिट करने के जाएगा। तो अपनी एक वॉल्ट सर्विस बनेगी इस VM की जो हमने बनाई है और वो जो सबमिट होगी रिकवरी वॉल्ट में। तो ये डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस है, अभी 5 से 10 मिनट में ये अपनी पूरी सर्विस बना लेगा और इसने एक्सेप्ट कर लिया है और हमारी वॉल्ट सर्विस बन चुकी है। तो इसको मैं न्यू टैब में अगर ओपन करूँ तो इस तरीके से मुझे दिखेगा। ये अकाउंट पूछेगा किस अकाउंट से आपको ये करना है, तो मेरा जो अकाउंट है इसमें अपने को एक्सेस नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन चेक कर लेते हैं। मेरी वर्चुअल मशीन में चलता हूँ मैं वापस। ये मेरा वर्चुअल मशीन है। ओके, यहाँ पर अपने को देखिए कि प्रॉपर्टीज में जो अपन ने बैकअप क्रिएट करा था उसकी बैकअप पॉलिसी बनी है कि नहीं, वो बनाएंगे। ओके, तो ये वॉल्ट बन चुका है। ओके, यहाँ लास्ट बैकअप, इनिशियल बैकअप, पास्ट है, पेंडिंग है। यहाँ पर एप्लीकेशन कंसिस्टेंट है, मतलब एप्लीकेशन अगर कुछ इंस्टॉल करना हो तो 30 डेज का रिकवरी पॉइंट दे रहा है ये इस वर्जन में अपना। अब यहाँ पर देखिए मैं बैकअप रिस्टोर VM ये सब ऑप्शन अपने पास ग्रेड आउट है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन अब VM लेवल का बैकअप करना है तो अपन इसमें बैकअप सेंटर में चल के अपन VM का रिस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपने को अगर पूरा बैकअप करना है तो इस तरीके से ये पर शो होगा शेड्यूल बैकअप। अभी एक प्रोटेक्शन इसने 1 बना दिया है। ओके, तो अब अगर अपन यहाँ पर अपना डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रिसोर्स में जा सकते हैं अपन। ओके, तो इस तरीके से अपन बैकअप कर सकते हैं। अब ये पूछ रहा है यहाँ पर बैकअप किसको करना है, ये वॉल्ट सर्विस जो बन गई है
तो क्या व्हाट यू वांट टू बैकअप, तो अजूर वर्चुअल मशीन अपने को बैकअप करना है। तो बैकअप पे क्लिक करा मैंने, कॉन्फ़िगर बैकअप कैसे करना है बैकअप, इसकी फ्रीक्वेंसी बोली है। अब यहाँ पर अपने को वर्चुअल मशीन ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं वर्चुअल मशीन का नाम लिख दूंगा VM01। वापस में कैंसिल करके सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इनेबल करा मैंने बैकअप, प्लीज सिलेक्ट वर्चुअल मशीन फॉर बैकअप। तो यहाँ से भी अपन बैकअप कर सकते हैं, बैकअप इंस्टेंसेस। ये अपना अजूर वर्चुअल मशीन है। ओके, वैल्यू टाइप कौन सी सर्विस अपन ने यूज करी है, तो ये वॉल्ट ऑटोमेटिकली इसमें सेलेक्ट कर लेगा। इस तरीके से हम बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो वॉल्ट सर्विस अभी कॉन्फ़िगर अपने को बैकअप करना है, तो यहाँ पर अपन इनेबल बैकअप कर सकते हैं, या फिर इसमें वर्चुअल मशीन ऐड कर देगा ये, जिसका नाम है VM01। बैकअप में चलते हैं अजूर वर्चुअल मशीन के साइट रिकवरी बैकअप आइटम्स। ओके, देखिए यहाँ पर हम बैकअप आइटम देखते हैं। एक अजूर वर्चुअल मशीन है, मतलब इतनी चीज़ें बैकअप कर सकते हैं हम। सीक्वल मशीन, एसीपी की मशीन, अजूर स्टोरेज, डीपीएम, अजूर बैकअप सर्वर, बैकअप एजेंट। ओके, तो अभी अपना बैकअप आइटम्स जो है अजूर वर्चुअल मशीन है। तो इसको देखिए यहाँ पर एक अगर अपन बैकअप करना चाहें तो यहाँ पर अपन इस वर्चुअल मशीन का बैकअप बना सकते हैं, बैकअप आइटम्स और भी अपन ऐड कर सकते हैं दूसरी वर्चुअल मशीन। तो ये दूसरी वर्चुअल मशीन बनाने के लिए कर रहा है। तो एक हमारी वर्चुअल मशीन बैकअप आइटम जो हो रहा है अभी अजूर में है। ठीक है, अब इसमें मुझे इसका बैकअप करना है, इस अजूर वर्चुअल मशीन का। तो हम वर्चुअल मशीन चलते हैं। देखिए VM01 जो है ये अपना बैकअप वर्ल्ड मशीन है। अभी इसमें अपने को बैकअप करना है, तो बैकअप मशीन इसकी बैकअप कब तक अपने को रिटेन करना है, तो ये डेट दे देगा 27 फरवरी तक, या फिर 27 नेक्स्ट 30 डेज में ये बैकअप करना है। तो एक शेड्यूल दे देता हूँ मैं, 1 मार्च तक का बैकअप करना है मुझे। ओके, एक कोई भी डेट दी थी मैंने, और ये ट्रिगर करना है बैकअप उस VM के लिए। तो ये प्रोग्रेस में है, एक 5 मिनट्स में इसका बैकअप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ इसका जेसन भी देख सकते हैं अपन कि वॉल्ट सर्विस में क्या क्या सब्सक्रिप्शन है अपने पास, इसका रिसोर्स ग्रुप का नाम क्या है, वीएम का नाम क्या है। ये अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो अपने को कोई भी जेसन टेम्पलेट बनाना है अजूर में, उस बेसिस पे भी अपन इसको स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं। ओके, तो अभी हमारा प्रोसेस चालू है, बैकअप ट्रिगर कर रहा है वीएम के लिए, और उसकी एक नई वीएम हमको बना के देगा ये, जो कि इसका सेम लेवल का बैकअप हम देख सकते हैं। फाइल रिकवरी, यहाँ पर फोल्डर भी दिखेगा, उसके अंदर अपने को ये टेस्ट फोल्डर के अंदर टेस्ट फाइल जो बनाई है और उसका जो अंदर का कंटेंट है ये फाइल का, ये भी हम देख सकते हैं, जो अपना नया वर्चुअल मशीन का बैकअप बनेगा उसमें। तो हमारा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाने देते हैं। देखिए हो चुका है हमारा ट्रिगरिंग बैकअप फॉर 01। अब ये देखिए यहाँ पर एक अपना कॉन्फ़िगर बैकअप है अजूर वर्चुअल मशीन का, ये अभी अपन ने बनाया है, ये कंप्लीट हो चुका है, डेली जो चलेगा हमारा। ओके, और नेक्स्ट जो बैकअप जो बनाया है अपना ये वाला है, जो कि 1 मिनट पहले बनाया हमने। ओके, इसको भी अपन रिफ्रेश कर सकते हैं, और इसका स्नैपशॉट इन प्रोग्रेस है। होम पे चल के वन बैकअप आइटम देख सकते हैं आप, वोल्ट में कि हमारा वोल्ट में क्या इसका आउटपुट बताया है। ओके, तो मैं चलता हूँ मेरा बैकअप वोल्ट में। बैकअप वोल्ट कुछ है नहीं मेरा, वोल्ट सर्विस जो अपनी बनी थी बैकअप सर्विस वोल्ट। ओके, अभी यहाँ पूछ रहा है यहाँ क्या बैकअप आपको करना है। तो बैकअप गोल में ये जैसे अपन ने देखा था कि वर्चुअल मशीन को बैकअप करना है, तो नई वर्चुअल मशीन भी अपन ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो अभी अपना बैकअप आइटम देख सकते हैं क्या क्या हो चुके हैं। एक वर्चुअल मशीन है। ओके, टेस्ट ऑल डेटा फेच्ड फ्रॉम दिस सर्विस। बैकअप फ्री चेक अपना पास हो चुका है। ओके, डेली पॉलिसी सेटिंग भी अपन देख सकते हैं। बैकअप फ्रीक्वेंसी का डेली पे 8 बजे बैकअप होएगा IST टाइम पर। ओके, तो इस तरीके से हमारा बैकअप बन चुका है, और हमारी वोल्ट सर्विस में जो बैकअप है वो हमने बैकअप कर लिया एक VM। ओके, तो यहाँ से अपन दूसरी VM अगर बैकअप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। बैकअप पॉलिसीज क्या है अपनी, तो बैकअप पॉलिसीज ये डेली अपना सिलेक्ट करेंगे अपना जो VM में है। ओके, तो इस टाइप से अपन इसका रिस्टोरेशन कर सकते हैं। अगर अपने को रिटेंशन भी करना है या फिर इसका कुछ नया रिसोर्स ग्रुप बनाना है तो वो भी अपन अपडेट पहला कर सकते हैं इसमें। ओके, एंड हम अपन चल सकते हैं कि बैकअप वोल्ट में जो ये वर्चुअल मशीन है हमारा, इसमें बैकअप आइटम्स अपन देखें बैकअप्स में। ओके, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर अपना जो स्टोरी पॉइंट 60 डेज का है, और यहाँ पर जो है अपना ऑप्शन क्रिएट। ओके, यहाँ पर तो मुझे रोकना है बैकअप, तो मैं रोक भी सकता हूँ। यहाँ वर्चुअल मशीन सेलेक्ट करके क्या है, प्रोडक्ट हैज बीन टू मेनी एरर्स स्टॉप द बैकअप, तो इस टाइप से अपन बैकअप को रिस्टोर भी कर सकते हैं या फिर स्टॉप भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा वीडियो था
बैकअप का Azure में वर्चुअल मशीन में किस तरीके से हम बैकअप करते हैं और किस तरीके किस डेट से अपन बैकअप कर सकते हैं और उसकी रिस्टोरेशन कैसे कर सकते हैं, बैकअप को कैसे रोक सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे कनेक्टेड विद अवर चैनल एंड हैव अ गुड डे, बाय। Azure पॉलिसी बना सकते हैं, बट इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि किस तरीके से हम स्टोरेज अकाउंट बना के उसमें हम फाइल शेयर्स क्रिएट करके एक्सेस कर सकते हैं। सो ये मैंने स्टोरेज अकाउंट बनाया है, यहाँ से क्रिएट करके न्यू स्टोरेज अकाउंट बना सकते हैं अपने रिसोर्स ग्रुप में। तो मैं ऑलरेडी चूंकि बना चुका हूँ, मेरे पास एक रिसोर्स ग्रुप है, इसलिए ये स्टोरेज अकाउंट मेरा है क्लास स्टोरेज 1981 नाम से। ठीक है, ये मेरा इस TOS रिसोर्स ग्रुप में है, ईस्ट यूएस रिसोर्स में, जो कि प्राइमरी रीजन है और सेकेंडरी लोकेशन सेकेंडरी वेस्ट यूएस है। ओके, अभी चूंकि मेरा स्टोरेज अकाउंट बन चुका है, तो इसमें कंटेनर्स, फाइल शेयर्स, क्यूज और टेबल्स है, ये हम वन बाय वन देखेंगे। तो आज हम देखेंगे कंटेनर्स। तो इस तरीके से कंटेनर्स एक चीज रहती है जिसमें कि वो पर्टिकुलर फाइल शेयर्स या कुछ भी ऑन प्रीमाइसेस का ऑब्जेक्ट है वो होल्ड करेगा। तो मैंने यहाँ पर एक नया कंटेनर बना दिया है जिसका नाम है टेस्ट। ओके, तो इस तरीके से अब हम ऑन प्रीमाइस की बात करें तो मेरी लोकल मशीन है, VM है। यहाँ पर मैं क्रोम में जाके Azure स्टोरेज एक्सप्लोरर टाइप करूंगा और वो ऐसे डाउनलोड करके दिखेगा मुझे। डाउनलोड करने के बाद जो कि मेरे अब स्टोरेज अकाउंट ये है, तो इस तरीके से मैं उसको एक्सेस करूंगा। यहाँ पर स्टोरेज अकाउंट यहाँ शो होगा और इस तरीके से अब जैसे जो कि मेरे दो स्टोरेज अकाउंट है, इसलिए मुझे ये मैंने दो चीज़ बना रखी है। एक तो स्टोरेज अकाउंट जिसका नाम है एक्सेस की, तो इस तरीके से मैं इसको कनेक्ट करूँगा। कनेक्ट करने के बाद फर्स्ट मेथड में हम इसको यूजिंग जो कि अपना स्टोरेज अकाउंट है उसको हम एक्सेस की के थ्रू एक्सेस करेंगे, जिसमें कि अपने को स्टोरेज अकाउंट के लिए पूछेगा Azure स्टोरेज एक्सप्लोरर में। सो हम यहाँ पर स्टोरेज अकाउंट पे क्लिक करेंगे, तो अकाउंट नेम की डालेंगे यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए। अकाउंट नेम जो डिस्प्ले नेम है मेरा, तो वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा कुछ भी, और स्टोरेज अकाउंट नेम है वो यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा। और इस तरीके से अकाउंट की जो मेंशन करके मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। एक्सेस की आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, शो पे जब आप क्लिक करेंगे यहाँ पर कॉपी करिएगा और इस तरीके से हम यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पे जाके वो स्टोरेज अकाउंट बनने के बाद ऐसा दिखेगा हमको, और इस तरीके से हम वहाँ के शेयर्स जो हैं वो हम एक्सेस कर सकते हैं, जो कि मेरे Azure में है। तो यहाँ पर जो मेरे फाइल शेयर्स हैं कंटेनर्स में, जो कंटेनर बनाया है मैंने जो एक टेस्ट नाम का, वो मुझे स्टोरेज अकाउंट से मैं एक्सेस कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं कोई फाइल बनाता हूँ, सपोज मुझे कोई फाइल अपलोड करना है, तो मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। यहाँ अपलोड पे क्लिक करके वो अपने कंप्यूटर से कोई भी फाइल यहाँ पर मैंने डाली है, तो वही फाइल मुझे अपने ऑन प्रीमाइस से यहाँ पर Azure अकाउंट में भी दिखेगी। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि किस हम कोई भी एसेट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो हम ऑन प्रीमाइस सर्वर से Azure पोर्टल पे भी एक्सेस कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। Hi friends, so today we will discuss how to create a NetApp profile in Azure. Okay, so first we will go to Azure portal, and here we will select this option called Cloud Shell. ये Cloud Shell select करने के बाद मुझे ये एक स्टोरेज असाइन हो जाता है, जो कि क्लाउड शेल होता है स्टोरेज का साउथ सेंट्रल यूएस में। ओके, तो अब ये जो शेल है, इस शेल में अपने को स्पेस प्रोवाइड मिलती है, जिसमें कि आप पावर शेल बैश कमांड रन कर सकते हैं। ओके, सो अपना एजेंडा जो है, वी हैव टू क्रिएट ए नेट ऐप पोल बनाना है अपने को Azure में। सो इसके लिए मैं सब कुछ डिफाइन पावर शेल मॉडल लूंगा, जो कि मैंने स्टोरेज अकाउंट लिया था, वो स्टोरेज अकाउंट को मैप करके मैंने पावर शेल में ये कमांड रन करूंगा। रिसोर्स ग्रुप जो है RJ1 और ईस्ट यूएस इसको लोकेशन दिया है, अकाउंट नेम, इस तरीके के पैरामीटर देके मैंने ये आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके वही मैंने यहाँ पर करा है, यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। तो और ये सब्सक्रिप्शन देके इस रिसोर्स ग्रुप बन जाएगा। उसके बाद अपने को जैसे नेट ऐप अकाउंट बनाना है, तो इसके लिए एक नया रिसोर्स ग्रुप बनाएंगे इस कमांड से, न्यू रिसोर्स ग्रुप, जो कि मैंने यहाँ पर दे चुका हूँ। यहाँ पर न्यू रिसोर्स ग्रुप, एसी रिसोर्स ग्रुप, उसका नाम और लोकेशन नेम जो कि ऑलरेडी ले लेगा ये RJ1 माई RJ1 एंड लोकेशन वुड बी माई ईस्ट यूएस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है अपने पास कि इसमें अपने को एक नेटऐप कमांड, नेटऐप प्रोफाइल बनाना है। सो उसके लिए ये
कॉपी करी हमने कमांड और इस तरीके से हमने अजूर पोर्टल में न्यू इजी नेट ऐप फाइल्स अकाउंट करके एक कमांड है दैट वी हैव गिवन, और इसके अंतर्गत हम रिसोर्स ग्रुप लोकेशन और नेमिंग कन्वेंशन जो है उसमें अपना अजूर नेट ऐप प्रोफाइल बनाएंगे। अब चूंकि इस कमांड को ये एज ए रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है न्यू एज्योर ऐप फाइल्स अकाउंट, तो इसके लिए अपने को एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है az.netApp फाइल्स। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मेरे क्लाउड शेल में जो है पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सॉरी ये ऊपर पेस्ट हो गया। ओके, यहाँ यस सो नोट करने की बोल रहा है तो मैं वाई टाइप कर देता हूँ यस। ओके, तो अब मैं अपनी दूसरी कमांड रन कर सकता हूँ जिसमें कि अब हमने इंस्टॉल मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लिया है और नाउ वी कैन पुट दिस कमांड टू इंस्टॉल द रिसोर्स पूल। इसको मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ फॉर बेटर विजिबिलिटी। अब मैं कमांड पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमने एक बार अज्योर का नेट ऐप मॉड्यूल इंस्टॉल करने के बाद हम इसको रजिस्टर करा सकते हैं। तो एक अपना नया एजी नेट ऐप अकाउंट बन जाएगा। सो यूजिंग PowerShell मॉड्यूल एंड इट विल टेक सम टाइम। मैं एंटर प्रेस करता हूँ और अपन यहाँ पर रिफ्रेश कर सकते हैं अजूर पोर्टल में। होम पे देख सकते हैं हम जाकर चल के। सो नेट ऐप मैं अगर टाइप करूँ यहाँ पर अजूर नेट ऐप फाइल्स, ओके, तो देखिए माय अकाउंट 1 मेरा बन चुका है जो कि मैंने कमांड दी थी। रिसोर्स ग्रुप जो कि माय RJ1 और लोकेशन ईस्ट यूएस में मेरा एक अजूर नेट ऐप फाइल्स बन चुका है। इस पर मैं क्लिक करूंगा तो मुझे डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। रिसोर्स ग्रुप RJ1 में बना है जो कि सब्सक्रिप्शन डिफॉल्ट सब्सक्रिप्शन के साथ लोकेशन ईस्ट यूएस। थैंक यू। सो आज हमने देखा कि किस तरीके से हम एक नेट ऐप फाइल्स बना सकते हैं एज्योर नेट ऐप अकाउंट इन एज्योर यूजिंग PowerShell। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैपेसिटी पूल कैसे बनाया जाए और उसमें NFS वॉल्यूम्स कैसे क्रिएट करे जाए। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, सो आज हम देखेंगे कि अजूर में कैसे हम पॉलिसी बना सकते हैं। सो टू इंश्योर कंप्लायंस, जिसके कारण अपनी सिक्योरिटी जो ब्रीच होती है उसके अकॉर्डिंग वी कैन क्रिएट पॉलिसी एंड असाइन और मैनेज कर सकते हैं अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन लेवल के लिए। सो इसके लिए प्रीरिक्विजिट हमको एक अजूर पोर्टल लगेगा जिसमें कि फ्री अकाउंट AAC को सब्सक्रिप्शन से आप क्रिएट करके अजूर अकाउंट बना सकते हैं एंड देन वी विल असाइन पॉलिसी टू द अजूर अकाउंट। सो इस केस में फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे कि कैसे पॉलिसी को असाइन करते हैं। सो फर्स्ट मैं लॉगिन हो गया अजूर पोर्टल पे एंड वी विल गो टू पॉलिसी में जाके वहाँ पर हम असाइनमेंट्स में देखेंगे। तो ये मेरे पास डिफॉल्ट सब्सक्रिप्शन है जो कि इस अजूर पोर्टल का है। अब यहाँ पर मुझे इससे पॉलिसी असाइन करना है तो इसके लिए मैं अकॉर्डिंग टू अपना जो अजूर का वर्कशॉप है learn.microsoft.com, यहाँ से आप स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन से पॉलिसी बना सकते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले अजूर पोर्टल पे गया, वहाँ पर मैंने पॉलिसी टाइप करा। सो पॉलिसी जो कि हम उसी पेज पे हैं और उसके बाद नेक्स्ट असाइनमेंट पे क्लिक करा लेफ्ट साइड में। तो यहाँ देख सकते हैं ये असाइनमेंट्स जो कि मेरा डिफॉल्ट सब्सक्रिप्शन है। उसके बाद मेरे को पॉलिसी असाइन करना है। सो अंडर असाइनमेंट यहाँ पर हम असाइन पॉलिसी क्लिक करके यहाँ पॉलिसी बना सकते हैं। तो यहाँ पर नाम देखिए मेरा जो सब्सक्रिप्शन जो स्कोप है, अब स्कोप क्या होता है, स्कोप इसके अंदर अपन क्लिक करके पढ़ सकते हैं कि स्कोप का डेफिनेशन क्या होता है। तो पॉलिसी बनाने के लिए अपने को एक स्कोप डिफाइन होता है जिसके थ्रू वो पूरे सब्सक्रिप्शन में चेक करता है कि कहाँ सब्सक्रिप्शन है जिसमें इस तरीके की पॉलिसी असाइन करना चाहिए। तो वो चीज़ होती है स्कोप। तो वापस मैं अपने वीडियो पे आता हूँ और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पॉलिसी असाइन करना है हमें। तो इसमें असाइन पॉलिसी में जिससे मैंने क्लिक करा था और स्कोप सेलेक्ट करेंगे बाय क्लिकिंग ऑन 3 एक्लिप्स बटन। तो यहाँ पर मैं पॉलिसी डेफिनेशन का नाम देता हूँ, इस पर क्लिक करके ये टैब ओपन होगा। अभी इसमें एक पॉलिसी हम बना रहे हैं तो यहाँ पर देखते हैं अपन कौन सी पॉलिसी अपन सेलेक्ट कर सकते हैं।
अभी पॉलिसी जो है हम रिसोर्स ग्रुप या मैनेजमेंट ग्रुप दोनों को असाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए अपन यहाँ पर हम जो स्क्रीन आएगी बिल्ट इन टाइप्स जो सेलेक्ट करने के लिए ये हम पॉलिसी सेलेक्ट करेंगे। बिल्ट इन में पॉलिसी डेफिनेशन में जाके बिल्ट इन सेलेक्ट करेंगे। सो पॉलिसी डेफिनेशन यहाँ पर 3 टाइप में कस्टम, ऑल टाइप्स और बिल्ट इन। और यहाँ पर हम सर्च करेंगे अपना जो टाइप है इनहेरिटेड टैग फ्रॉम रिसोर्स ग्रुप इफ इट इज मिसिंग। तो ये वाली अपन पॉलिसी डिफाइन करेंगे हमारे एज़्योर ग्रुप में। तो ये मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा इसको। तो देखिए ये वाली पॉलिसी आ गई है। ये रिसोर्स ग्रुप से टैग सर्च करके पॉलिसी जो मिसिंग रिसोर्स है वो ओपन करके पॉलिसी उठा लेगा। ओके, अब असाइनमेंट नेम भी इसमें असाइन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपने एज़्योर पोर्टल पे चलते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या बताया इसने, फॉर एग्जांपल असाइनमेंट इज ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड विद द पॉलिसी नेम सिलेक्टेड। ठीक है, अभी डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है तो अपन देना चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज वी आर गुड टू दिस। पॉलिसी एनफोर्समेंट बाय डिफॉल्ट रहनी चाहिए, ये रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करेंगे अपन। इसके बाद वापस बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग्स रहेगी वैसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पर कुछ पैरामीटर मिसिंग हो रहा है, जो हम इस पर क्लिक करते हैं। टैग का नेम नहीं दिया है अपन ने, तो टैग का नेम अपन इसमें देख लेंगे डॉक्यूमेंट में क्या टैग का नेम था। तो टैग नेम है एनवायरनमेंट। ओके, तो इस तरीके से हम एनवायरनमेंट टैग नेम देके इसका अपना पॉलिसी डेफिनेशन बना देंगे। रिव्यू एंड क्रिएट क्लिक करा, इसके बाद क्रिएट पे क्लिक करा मैंने, तो अभी पॉलिसी असाइनमेंट बन रहा है। ओके, इट सक्सीडेड। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि देखिए इनहेरिटेड टैग फॉर रिसोर्स ग्रुप मिसिंग, जो कि अपना पॉलिसी बन चुका है। मतलब अगर कोई रिसोर्स ग्रुप मिसिंग होगा तो ये पॉलिसी उसको टैग नेम से इन्वॉल्वमेंट वैल्यू जो नाम है टैग का उससे ही असाइन हो जाएगी। ठीक है, इसका कंप्लायंस देखेंगे। सो ये 100% रिसोर्स कंप्लायंस है। ओके, सो इस तरीके से इस वीडियो में हमने आज देखा कि किस तरीके से पॉलिसी असाइन करते हैं वीएम्स को, रिसोर्स ग्रुप को। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे न्यू कस्टम पॉलिसी असाइन करते हैं। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, सो आज हम देखेंगे कि पॉलिसी डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं पावरशीट के थ्रू। जैसे कि लास्ट वीडियो में पॉलिसी बिल्ट इन पॉलिसी डेफिनेशन कैसे बनाई जा सकती है और कस्टम जो पॉलिसी कैसे बनाई जा सकती है इन एज़्योर पोर्टल। बट नाउ वी विल सी पॉलिसी कैसे बना सकते हैं पावरशीट से। तो इसके लिए हमको सबसे पहले पॉलिसी डेफिनेशन पावरशीट से बनाने के लिए इसका एक पावरशील का टेम्पलेट हमें करना पड़ेगा, लेटेस्ट वर्जन इजी मॉडल इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसके लिए पॉलिसी डेफिनेशन बनाने के लिए हमको एक एग्जांपल के तौर पे ये वाला जो है एक स्टोरेज अकाउंट बनाना पड़ेगा Azure में। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ Azure पोर्टल पे, क्लाउड शेयर। ये हमें परमिशन देगा जो आपका इस केस में आपका अगर पे सब्सक्रिप्शन होगा तो उसके थ्रू ये परमिशन देगा आपको स्टोरेज क्रिएट करने के लिए। मेरे इस केस में Azure सब्सक्रिप्शन हुआ है, इसलिए उस स्टोरेज अकाउंट पे पावरशेल का मॉडल क्रिएट करेगा। स्टोरेज अकाउंट रेडी होने के बाद हम पॉलिसी डेफिनेशन बना सकते हैं। और ये पावरशेल के थ्रू बनाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमको एक पाथ देना पड़ेगा जिस फॉर्मेट में जो इसका है। ये पाथ कैसे तरह से हम यहाँ डालेंगे पॉलिसी में और डॉलर डेफिनेशन करके ऐसे डिफाइन करेंगे। तो लेट्स वेट जब तक हमारा पावरशेल पॉलिसी डेफिनेशन बन नहीं जाता है। ठीक है, तो मेरा देखिए ऑथेंटिकेट और पॉलिसी डेफिनेशन पे अपने नया अपना स्क्रिप्ट जो है वो मैं पॉलिसी डेफिनेशन करता हूँ। तो यहाँ पर नेम और पैरेंटल पूछा है। ठीक है, तो नेम क्या रहेगा मेरा पॉलिसी डेफिनेशन लेट से न्यू फुल टायरिंग है, फुल टायरिंग ये वाला मैं पॉलिसी डेफिनेशन का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो ये नेम मैंने यहाँ पे पेस्ट करा। ओके, एंटर प्रेस करा। पॉलिसी का नाम, पॉलिसी जो है कहाँ से इनहेरिट करेगा ये, मैं इसको ये पाथ में लिखता हूँ। करके मैंने कॉपी कर दिया और ये पॉलिसी का नाम यहाँ पर पेस्ट कर दिया और एंटर प्रेस करा। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर इसने देखिए ये वाली पॉलिसी भी बना दी है। इसका रिसोर्स नेम है डिनाई फुल टायरिंग और सब्सक्रिप्शन है। इस तरीके से पॉलिसी डेफिनेशन बन चुका है मेरा। अब इसको देखेंगे कैसे देखेंगे इस पॉलिसी डेफिनेशन बना के। तो इस तरीके से हम गेट वापस ही कमांड डालेंगे, गेट पॉलिसी डेफिनेशन, गेट इजी पॉलिसी डेफिनेशन। इसमें अपने को पूरा बता देगा कि कितनी पॉलिसी बनी है इसकी ओवरऑल। तो ये देखिए हमने अभी लास्ट में जो बनाई है पॉलिसी फुल टायरिंग रिसोर्स नेम, इस तरीके से यहाँ अपन मैनुअली इसको चेक कर सकते हैं मिनिमाइज करके पॉलिसी में जाके पॉलिसी डेफिनेशंस में जाके गेटिंग स्टार्टेड में डेफिनेशंस लिख सकते हैं।
वो एक तरीका था PowerShell से हमने किस तरीके से बनाया पॉलिसी डेफिनेशन का। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पॉलिसी डेफिनेशन कैसे Azure CLI से बनाते हैं। तो वापस मैं Azure पोर्टल पे चलता हूँ देखने के लिए कि मेरी पॉलिसी डेफिनेशन बनी। देखिए यहाँ पर मेरी पॉलिसी डेफिनेशन बन चुकी है। इसका नाम था फुल फायरिंग और यहाँ डिनाई फुल फायरिंग एंड वी आर गुड टू गो। सो इस तरीके से आज हमने देखा कि किस तरीके से पॉलिसी डेफिनेशन बना सकते हैं यूजिंग PowerShell। थैंक यू। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम बिल्ट इन पॉलिसी डिजाइन करते हैं। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से पॉलिसी को हम कस्टम पॉलिसी बना सकते हैं। कस्टम पॉलिसी Azure में कैसे बनाते हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। तो इसके लिए हम Azure पोर्टल पे जाएंगे और यहाँ पर पॉलिसी टाइप करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पॉलिसी हमने देखा और यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करके यहाँ असाइन पॉलिसीज पे क्लिक करेंगे, व्यू डेफिनेशन। अब यहाँ पर इस केस में हमको कस्टम पॉलिसी बनाना है। कस्टम पॉलिसी में ऐसा रहेगा कि अपन इसलिए बनाते हैं कि इससे कॉस्ट सेव हो सके। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कॉस्ट सेव करने के लिए एक ऐसी पॉलिसी बना रहा हूँ जहाँ पर वर्चुअल मशीन्स में G सीरीज के VM इंक्लूडेड ना हो, जिसके लिए इस तरीके से बेनिफिशियल रहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एक नया यूजर बनाता है तो वो जब वर्चुअल मशीन बनाएगा तो वो G सीरीज में अगर बनाने जाता है तो उसको रिक्वेस्ट डिनाइड होगी। इस तरीके की हम पॉलिसी बना रहे हैं इस वीडियो में, तो इसको बोलेंगे हम कस्टम पॉलिसी। ओके, तो इसके लिए हम Azure पोर्टल पे चलेंगे और वहाँ पर डेफिनेशन पे क्लिक करके ऑथराइजेशन पे जाएंगे लेफ्ट साइड में। तो मैं अपने Azure पोर्टल में जाता हूँ तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन में पॉलिसी डेफिनेशन में जाऊँगा मैं और यहाँ पर देखिए मुझे पॉलिसी डेफिनेशन बनाना है। यहाँ पर इनिशिएट कर सकते हैं डेफिनेशन। मैंने इनिशिएट डेफिनेशन पे क्लिक करा और यहाँ पर डेफिनेशन की लोकेशन पूछेगा। ओके, तो नेम ऑफ पॉलिसी डेफिनेशन का नाम लिख दूंगा मैं, रिक्वायर यूज नॉट इन द G सीरीज। तो ऐसे भी हम अपने को चाहिए जो कि G सीरीज में। तो इस तरीके की अपन पॉलिसी डेफिनेशन देने की हमारे डेफिनेशन लोकेशन पे, या फिर आप पिन एक्सप्लेस में क्लिक करके ऐसा आप सब्सक्रिप्शन चूज करेंगे जिसके थ्रू ये सब्सक्रिप्शन में आपका होगा। जैसे आपका पे एज यू गो मॉडल है तो पे एज यू गो में वो चीज़ चाहिए। अब मेरे केस में ये Azure सब्सक्रिप्शन कंपनी का है तो इसके अंतर्गत मैं इस सब्सक्रिप्शन को सेलेक्ट करके और पॉलिसी डेफिनेशन का नाम लूंगा, रिक्वायर VMs स्क्रूज नॉट इन द G सीरीज। यहाँ डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। तो डिस्क्रिप्शन में अपन मेंशन करेंगे दिस पॉलिसी डेफिनेशन इंश्योर्स दैट ऑल वर्चुअल मशीन्स क्रिएटेड इन दिस स्कोप have scopes other than G series to reduce the cost। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी पॉलिसी डेफिनेशन बनाएंगे वो ऐसी होगी जहाँ की जितने भी वर्चुअल मशीन्स रहेंगे उनके G सीरीज के अलावा हर वर्चुअल मशीन्स को एक्सेप्ट करेगा पॉलिसी में। तो ये मैं पेस्ट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पर पूछेगा नई कैटेगरी बनाना है या एक्सिस्टिंग, तो हम इसमें नई कैटेगरी बनाएंगे। हमारे केस में अगर एक्सिस्टिंग हो तो पहले से अगर अपने कोई बिल्डिंग बनाई हो, कोई API बनाया हो या ऐप सर्विस अपने अपने एप्लीकेशन में करी हो तो उस एप्लीकेशन में हम कुछ पॉलिसी को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो ऐप में कोई बैकग्राउंड इमेज दिख नहीं रहा है या आपको प्रिवेंट करना है कि लोगों को बैकग्राउंड इमेज ना दिखें, तो उस तरीके से आप वैसी ऐप सर्विस एक्सिस्टिंग पॉलिसी डिफाइन कर सकते हैं। और इसमें कैटेगरी में नई इसलिए बनूंगा क्योंकि मैं एक नई कैटेगरी का मैं नई पॉलिसी डिफाइन करूंगा। अब क्योंकि मेरी पॉलिसी है तो वो जेसन फॉर्मेट में रहेगी। इसके लिए इस तरीके से जेसन फॉर्मेट रहता है जहाँ पर इसके कुछ पैरामीटर्स रहते हैं, रूल्स रहते हैं और इफेक्ट रहते हैं। ठीक है, इफेक्ट इन द सेंस अलाउ या डिनाई करना चाहूँगा मैं, और रूल मतलब इफ एंड इक्वल्स रूल्स रहेंगे। मतलब अगर ये फील्ड इक्वल है तो वो पॉलिसी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो मैं बिना टाइम वेस्ट करे अपना जेसन फॉर्मेट में कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा पॉलिसी रूल में। तो ये पॉलिसी रूल जो बाय डिफॉल्ट रूल है सभी लोकेशंस के लिए, इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से और यहाँ पर मेरा नया पॉलिसी डिफाइन कर दूँगा पेस्ट करके। तो ये मेरा पॉलिसी डेफिनेशन हो गया है नया वाला, जिसको कि मैं नीचे स्क्रॉल करके सेव करूँगा। तो इस तरीके से हमने पॉलिसी डेफिनेशन बना लिया है। इसके यहाँ ज़्यादा सैम्पल्स भी आप इस पर देख सकते हैं। Azure पॉलिसी सैम्पल्स क्या क्या हो सकते हैं, बिल्ट इन पैटर्न्स, इस तरीके से आप डिटेल में चला के देख सकते हैं। तो अब वापस अपने Azure पोर्टल पे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पॉलिसी डेफिनेशन जो है हमारा बन चुका है। यहाँ पर इसको असाइन करना रहेगा। असाइन करने के बाद रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करके क्रिएट पॉलिसी डेफिनेशन सक्सीड हो गया है। तो अब हम वापस अपने Azure पोर्टल पे चलते हैं इसको देखने के लिए। जब हम पॉलिसी पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमारी पॉलिसी जो है यहाँ सब्सक्रिप्शन पे दिखेगी, फिर ऑल सब्सक्रिप्शन और पेज पे है पॉलिसी पे जाकर थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें बनने में, क्रिएटिंग पॉलिसी डेफिनेशन। ओके, सो ये वाली हमारी पॉलिसी डेफिनेशन यहाँ पॉलिसी में जाके
हमारी पॉलिसी डेफिनेशन बनी है, हम चेक कर सकते हैं। उसकी वजह से एक्टिविटी लॉग भी चेक कर सकते हैं, कुछ भी एरर आता है तो ये एक्टिविटी लॉग हमारा लोड हो रहा है, लॉग्स भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्टिविटी लॉग में हमारा पॉलिसी डेफिनेशन क्रिएट हो चुका है, डिलीट पॉलिसी असाइनमेंट, क्रिएट पॉलिसी असाइनमेंट। ठीक है, इस वीडियो में हमने ये चेक करा कि पॉलिसी कैसे बनती है और उसकी डेफिनेशंस कैसे अपन डिफाइन करते हैं। डेफिनेशंस में जाके हम चेक कर सकते हैं कि हमारी पॉलिसी किसको असाइन की है। तो इस वीडियो में हमने ये देखा, इस वीडियो में ये देखा कि किस तरह से पॉलिसी हम कस्टम पॉलिसी बना सकते हैं एज़्योर में। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हमने चेक करा था कि किस तरीके से हम एज़्योर पॉलिसी बनाते हैं यूजिंग पावरशेल और पावर CLI। नाउ हम इस वीडियो में हम चेक करेंगे कि ऑन डिमांड इवोल्यूशन स्कैन क्या होता है एज़्योर में। तो ऑन डिमांड इवोल्यूशन स्कैन एक तरीके से एक इवोल्यूशन स्कैन है किसी भी सब्सक्रिप्शन या फिर रिसोर्स ग्रुप के लिए। ये चाहे तो आप एज़्योर CLI से कर सकते हैं या एज़्योर पावरशेल या फिर कोई रेस्ट एपीआई कॉल करके। और अगर अपने को कोई शेड्यूल स्कैन करना है तो उस केस में अपन गिटहब के थ्रू वर्कफ्लो बना के कर सकते हैं, जैसे कि इसमें दिया है। और एक चीज़ ये है नोट करने की ज़रूरत है कि एज़्योर वर्चुअल नेटवर्क मैनेजर जो रहेगा वो करंटली सपोर्ट नहीं करेगा मैनुअल ट्रिगर्स और स्टैंडर्ड पॉलिसी कंप्लायंस जो कि डेली स्कैन में आएंगे। अब गिटहब के एक्शन में अगर अपन देखें तो अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे एवरी मॉर्निंग 8 AM पर कोई शेड्यूल स्कैन या फिर क्रोन जॉब चले तो वैसे कंप्लायंस स्कैन रन कर सकता हूँ किसी पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन के लिए। एंड नेक्स्ट चीज़ है एज़्योर ऑन डिमांड इवोल्यूशन स्कैन एज़्योर CLI। तो हम अब एक स्कैन करके देखेंगे किस तरीके से हम एज़्योर CLI में स्कैन कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने एज़्योर पोर्टल पे चलता हूँ। यहाँ पर मेरा एज़्योर पोर्टल है, तो मैं इसके लिए मुझे ये कमांड रन करने के लिए एक रिसोर्स ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो मैं एज़्योर में एक रिसोर्स ग्रुप बना देता हूँ MyRJ नाम से। तो ये एज़्योर सब्सक्रिप्शन है मेरा, आपके केस में पे एज़ यू गो होगा या फिर फ्री ट्रायल में हो तो फ्री यहाँ पर सब्सक्रिप्शन आएगा। तो यहाँ मैं एक रिसोर्स ग्रुप बना दे रहा हूँ, इसका नाम है MyRJ। तो ये यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और ये रिसोर्स ग्रुप यहाँ पर बना देते हैं। तो मेरा लोकेशन जो है ईस्ट यूएस में रखता हूँ बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे हम और ये मेरा रिसोर्स ग्रुप बन चुका है। ठीक है, इसके लिए अब हम एज़्योर CLI स्कैन की बात करें तो इसके लिए हमको एज़्योर पोर्टल में जाना पड़ेगा जो हमने रिसोर्स ग्रुप बनाया है। और यहाँ पर देखिए हमारे पास है एज़्योर क्लाउड शेल है जहाँ की पावर शेल ओपन हो जाएगा और एज़्योर CLI जो है यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं। तो एक क्लाउड का स्टोरेज बनेगा इस सब्सक्रिप्शन में, तो मैं क्रिएट स्टोरेज पे क्लिक करता हूँ। थोड़ा टाइम लगता है इसमें, तो हम थोड़ा वेट करते हैं। तो अभी इवैल्यूएशन स्कैन इसलिए रहता है कि हम जितने भी अपने रिसोर्सेस हैं उनको इवैल्यूएट कर सकें कि उस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन में। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा क्लाउड शेल अब जो है पावर शेल ये चल चुका है। तो हम पहले पावर शेल से देख लेते हैं किस तरीके से हम स्कैन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक कमांड डालूंगा स्टार्ट एज़्योर पॉलिसी कंप्लायंस स्कैन और रिसोर्स ग्रुप का नाम दूंगा। तो ये चीज़ ऐसी की ऐसी मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं और मैं प्रेस करता हूँ एंटर। शायद मिस्टेक हुआ है, कंट्रोल सी करके हम एग्जिट कर सकते हैं। ओके, तो ये कनेक्ट हम टर्मिनल पे कनेक्ट करके इस तरीके से हम अपना स्कैन जो है कर सकते हैं। आपको कोई फाइल अपने को अपलोड करना है तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई नया सेशन ओपन करना है तो वैसे भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ से मैं अगर लॉगआउट करना चाहूँ वापस अगर रन करना है कमांड तो इस तरीके से रिस्टार्ट भी कर सकते हैं क्लाउड शेल। वापस मैं स्टार्ट करता हूँ, इसको रिस्टार्ट करके जिसकी नया सेशन क्रिएट होगा तो मैं वापस अपने नए सेशन के पावर शेल में हूँ। यहाँ पर देखिए कॉमन कमांड कॉपी करके और ऑथेंटिकेट कर रहा है यूजर को, एज़्योर ड्राइव बिल्ड कर रहा है स्टोरेज अकाउंट के लिए। और नाउ गाइस मैं पेस्ट कर देता हूँ मेरा ग्रुप नेम और एंटर। तो इसमें ये पूरा स्कैन करेगा पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन जो कि इसका नाम है एज़्योर सब्सक्रिप्शन 1 और ये डिफॉल्ट सब्सक्रिप्शन में पेस्ट करके पूरी डिटेल्स लाएगा।
सो इस तरीके से हम इसमें स्कैन कर सकते हैं, ऑन डिमांड इवैल्यूएशन स्कैन जिसको बोलते हैं। और इसके लिए हमको थोड़ा रुकना पड़ता है, यहाँ पर अपन कोई जॉब भी चला सकते हैं, उसको पैरामीटर देके एज ए जॉब पैरामीटर, और यहाँ पर हम उस जॉब ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर रिजल्ट में मैप करके यहाँ पर ऐसा रिजल्ट देख सकते हैं, और इसकी जो प्रॉपर्टी रहेगी वो कंप्लीटेड स्टेट में आ जाएगी। ओके, थैंक यू गाइस।